or we can No, no, start it no. simultaneously? You can start with HackerRank. I had already mentioned that you need to. I had already mentioned that you need to learn the basics of CP on HackerRank because it is a very beginner friendly platform. You can make an ID on HackerRank and practice there. Then you can gradually shift to CodeChef and CodeForces for further competitive programming. Any other doubt? No, sir, I'm asking, sir, when to start DS Algo? Like, first complete the whole C++ course, or we can start it simultaneously, like Uh, studying C++ No, and DS. you should complete first because first you should be perfect in one language. Then you should start with DSL so that you will be better versed. Any other doubt? And one more, sir, sir, it was about typing speed, sir. Like, it's very slow. So, does it matter at the higher levels or what? It does not matter. It does not really matter that much. You have ample amount of time, so with time you will gradually speed up. So that doesn't matter much. Anyone else who has doubt because I am going to start the session, problem solving session for you guys. अगर आप हिंदी में भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो डाउट कोई वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम just raise your hand and we will unmute we will allow you to ask your question. Am I audible? Yes, sir, audible. uh, so if anyone else does not have a doubt, shall we begin with the session ahead? हेलो सर। Yes, yes. सर मैंने सौरभ शुक्ला सर के मतलब कम से कम 50 लेक्चर देख लिए हैं और तो मैं C++ पे किस टाइम मूव कर जाऊं? You should first complete C, then you should move to C++. You should ओके first complete one language and practice that on HackerRank. You will find C programming questions on HackerRank. You should practice them and then move to the next language, ये सब C++. मैं कर रहा हूँ करंट पे। Next question, if any. Shall I start with the session? If everyone agrees that they do not have doubt and I shall start, then they can raise their hands so that I can be so that I can start. Firstly, share this link in your respective group so that everyone can join. So I'm sharing my screen. Is my screen visible, Vanshika? Yes, it is visible. Uh, so we have decided to conduct a problem solving session for you guys. The agenda for today's session is to introduce you to problem solving on online judges like CodeChef and CodeForces. Why I have not included HackerRank because we have already told you that you can practice HackerRank questions, and if you have any doubts, you can ask us in the Telegram sections. Which language we would be preferring? We would be preferring C++ for that, but you can also use Java, but you should be using one of these two languages, either C++ or Java for competitive programming, and no other language, because these two are most popular and mostly these are available for coding. Then next is what topics we would be covering in today's session. So आज हम array cover करेंगे, आज हम मॉडुलस ऑपरेटर को देखेंगे कि हम मॉडुलस ऑपरेटर के क्वेश्चन से कैसे हम मॉडुलस ऑपरेटर से रिमाइंडर निकाल के किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. देन वी वुड बी यूजिंग हैशिंग. वी वुड बी यूजिंग बेसिक हैशिंग. तो हैशिंग बेसिकली क्या होती है? फ्रीक्वेंसी काउंटिंग. एक तरह से तुम इसे कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं हम, और उस पे बेस्ड भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, और लास्ट पे हम तुम्हारे सीपी रिलेटेड जो डाउट होंगे वो देखेंगे. तो ये आज का एजेंडा है. नेक्स्ट वी शुड मूव ऑन टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट.
So is the screen properly visible to you all guys? And I hope that my voice is not breaking or something else. Vinay? It is visible. Everything is okay. Fine. So let's move on to the first question. Uh, if you guys want, I can, but it is fine. I don't need to zoom in. So the question says this is only this much part is the question. This is the question part. So I'll read it out for you once. Let's call a sequence good. You have been given a sequence. Sequence is basically you are given few numbers, and it is called good if sum of all its elements is 0. So you have been given a sequence in the form of an array, and you may perform any number of operations on the sequence. In one operation, you should choose an index I and decrease it by AI. You can make the sequence good. Can you make the sequence good using these operations? So the question क्या है? Question basically हमसे ये कह रहा है कि एक sequence को हम good तब कहेंगे जब पूरे sequence का जो sum हो वो 0 आ जाए. मतलब पूरी, अगर तुम्हें एक एरे दी हुई है, तुम जब पूरी एरे का सम लो तो वो पूरी 0 आ जानी चाहिए. उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि तुम एक ऑपरेशन में हर एक इंडेक्स को AI से घटा सकते हो. ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि तुम अपने एरे को गुड बना सकते हो. ठीक है, इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू गाइज? If the question is not clear, you can raise your hand, please. Fine, I'll move on. So, for example, देखो जैसे अब तुम्हें ये देखो दो टेस्ट केसेस दिए हुए हैं. ये जो पहली बात है, पहले तुम्हें टी टेस्ट केसेस दिए होंगे. n is the number of elements in the array and ai is the ith element of the array. So basically पहले क्या हुआ है, दो टेस्ट केसेस दिए हैं. पहला टेस्ट केस ये है 1 और -1 का. मतलब एक एलिमेंट है और वो -1 है. दूसरे टेस्ट केस में दो एलिमेंट है, वो 1 और 2 है. ठीक है, तो मैं अब वन नोट पे जा रहा हूं तुम्हें दिखाने. पहला टेस्ट केस क्या था? 1 था, एक एलिमेंट दिया हुआ था, और वो जो एलिमेंट था वो था -1. तो तुम्हें सिर्फ एक एलिमेंट दिया हुआ है -1. और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि तुम अपने एरे के एलिमेंट को हमेशा डिक्रीज कर सकते हो AI से. मतलब हमेशा अपने AI को I से डिक्रीज कर सकते हो. ठीक है, तो जैसे कि तुम्हारा पहला इंडेक्स होगा तो तुम उसको 1 से डिक्रीज कर सकते हो, दूसरा इंडेक्स होगा उसको 2 से डिक्रीज कर सकते हो. समझ रहे हो? सो आई विल बिगिन विद दिस क्वेश्चन. तो देखो बेसिकली एक ही एलिमेंट दिया हुआ है और वो -1 है. ठीक है, तो अगर वो -1 है और वो पहला इंडेक्स है, जैसे कि मान लो तुम्हें एलिमेंट्स दिए होते, लेट्स से यू हैव बीन गिवन द एलिमेंट्स, दिस इज योर एरे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास एरे में 4 एलिमेंट्स होते हैं. तो पहला ब्लॉक जो है उसमें पहले ब्लॉक का इंडेक्स 1 है, दूसरे का 2 है. एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ. देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंडेक्सिंग जो है वो 1 से लेके n तक है. ठीक है, और अब देखो 1 2 3 एंड देन 4. सो हमसे ये बोला गया है कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, जब हम इनको ऐड करें, इन सबको ऐड करें, इन चारों एलिमेंट्स को जब हम ऐड कर रहे होंगे, तो जब हम ऐड करके जो भी हमारा सम आ रहा है वो गुड तभी कंसीडर किया जाएगा, वो गुड तब कंसीडर किया जाएगा जब सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 0. ठीक है, मतलब पूरी एरे का सम 0 हो जाना चाहिए. सो बेसिकली तुम्हें सम 0 करना है. अब तुम देखो इस केस में, देखो पहला केस क्या था, जब तुम्हें एक ही एलिमेंट दिया हुआ है. ठीक है, तुम्हें दिया हुआ है -1, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ -1 दिया हुआ है और यहाँ पे तुम्हारे एरे का इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ 1 है. तो तुम यहाँ क्या कर सकते हो कि तुम्हारा जो -1, पूरी एरे का सम तुम्हारा -1 है यहाँ पे. अब तुम क्या कर सकते हो कि तुम इसमें एक बार -1 करके देख लो, तो ये -2 आ जाएगा. तुम दूसरी अगली बार भी -1 करके देख लो, तो देखो ये -3 आ जाएगा. तो तुम जितनी बार भी -1 करते जाओगे, यानी कि ith इंडेक्स से उसको माइनस करते जाओगे अपने इंडेक्स से. जैसे कि अगर ये वाला इंडेक्स था तो तुम इस वाले एलिमेंट में -1 करोगे,
इस वाले एलिमेंट में तुम -2 करोगे दूसरे एलिमेंट के लिए, तीसरे एलिमेंट के लिए भी तुम एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितने भी टाइम्स तुम्हें पॉसिबल हो तुम -3 करोगे, चौथे एलिमेंट के लिए तुम -4 कर सकते हो जितने नंबर ऑफ टाइम्स भी तुम चाहो। तो अब क्या हो रहा है कि तुम इस एरे को जैसे ही देख रहे हो कि मैं -1 करता जा रहा हूँ, ये नेगेटिव होती चली जा रही है। तो सबसे बड़ी कंडीशन जो जरूरी होगी हमारे लिए यहाँ पे कि हमारी एरे पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हमारी एरे का सम पहले से ही नेगेटिव आ गया, तो तुम लोग ये चीज समझ पा रहे हो कि अगर हमारी एरे का जो टोटल सम है, मैंने सम निकाल लिया अगर एरे का, जो भी सारे एलिमेंट्स दिए हुए थे, जो एरे मेरा 0 पे था, लेट से वी हैव 4 एलिमेंट्स, एरे जो मेरा 0 पे था, जो मेरा एरे 1 पे था, प्लस जो मेरा एरे 2 पे था, और मेरा इंडेक्स नंबर 3 पे था, मतलब इंडेक्स नंबर 3 और जो एलिमेंट नंबर 4 था, अगर इन सब का सम मेरा, अगर मेरा इन सब का सम नेगेटिव आ रहा है ऑलरेडी, और मुझसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये इस एरे को मैं गुड तब समझूंगा जब इस पूरी एरे का सम जो है वो 0 आना चाहिए, इस पूरी एरे का सम 0 आना चाहिए। बट अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो मैं उसको 0 नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो इस इंडेक्स से मैं -1 एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकता हूँ, सेकेंड इंडेक्स से मैं -2 कर सकता हूँ एनी नंबर ऑफ टाइम्स, थर्ड इंडेक्स में मैं -3 कर सकता हूँ एनी नंबर ऑफ टाइम्स जब तक मैं 0 ना पा जाऊं, फोर्थ इंडेक्स पे मैं -4 कर सकता हूँ एनी नंबर ऑफ टाइम्स। सो द थिंग इज कि अगर मेरा एरे का सम, अगर तुम एरे इनपुट होगी तुम्हें मिलेगी, तुम सम देखो, अगर तुम्हें सम नेगेटिव मिलता है तो इसका मतलब तुम कभी भी उसको 0 पे नहीं ला पाओगे, क्योंकि तुम सिर्फ यहाँ पे माइनस करते जाओगे, किसी भी वैल्यू को -1 करोगे, -2 करोगे, कुछ भी करोगे, तो ये और ज्यादा बड़ी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ये -इंफिनिटी की तरफ जाएगी, तुम कभी 0 की तरफ नहीं पहुंच पाओगे। इस वजह से अगर कभी भी तुम्हारी एरे का सम 0 होता है तो तुम कभी इसको अचीव नहीं कर पाओगे। अच्छा, लेट से कि तुम्हें एरे के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लेट से कि तुम्हें एरे दी हुई है, लेट से कि अब तुम्हें एरे में क्या दिया हुआ है, लेट से कि एरे में तुम्हें 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और लेट से कि तुम्हें इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें तुम्हें 3 दिया हुआ है, और इसमें तुम्हें 7 दिया हुआ है, -7, और लेट से इसमें तुम्हें 0 दिया हुआ है। तो अब इसका टोटल कितना आएगा, टोटल इसका आएगा तुम्हारा 0। तो अब इस एरे का सम 0 हो गया, और हमसे एक बार मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम्हारी एरे को अच्छा तब समझा जाएगा, तुम्हारी एरे को अच्छा तब समझा जाएगा जब तुम्हारे सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0, ठीक है। तो अगर तुम्हारा बाय डिफॉल्ट जब तुम्हें एरे मिल रही है और तुम उसका सम निकाल रहे हो और वो 0 हो रहा है, देन तुम्हें यस प्रिंट करना है, यस प्रिंट करना होगा, ठीक है। अगर तुम्हारी एरे जो है वो 0 ऑलरेडी हो है, सम अगर तुम निकाल रहे हो और वो 0 है, तो तुम्हें यस प्रिंट करना है। तो हमने दो केसेस हमने डिस्कवर कर लिए। पहला केस ये था कि हमारी एरे अगर नेगेटिव हो रही है तो क्या करें, अगर एरे का सम नेगेटिव हो रहा है तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम हर बार क्या कर रहे हो, तुम्हें हर बार करने के लिए हर बार तुम्हें माइनस करने के लिए बोला गया इंडेक्सेस में से, तो तुम अगर और नेगेटिव वैल्यू डालते जाओगे अपने सम में, अगर तुम्हारा सम नेगेटिव आ रहा है और तुम उसमें और नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो, -1 कर रहे हो या -2 कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो तुम और माइनस इंफिनिटी की तरफ जाओगे, तुम कभी 0 की तरफ नहीं जा पाओगे। इसलिए तुम्हारा जब भी तुम्हारा नेगेटिव होगा तो तुम नो प्रिंट कर दोगे, ठीक है। अब दूसरा केस आता है, दूसरा केस मेरा ये आता है कि अगर मेरी एरे का जो सम है अगर वो 0 हो जाए, अगर मेरी एरे का सम 0 हो जाता है तो इसका मतलब कि वो ऑलरेडी परफेक्ट है, ऑलरेडी जो मुझे सिचुएशन दी हुई है कि एरे का पूरा सम 0 होना चाहिए वो ऑलरेडी है, तो मुझे उसमें से कुछ और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ। तीसरी बात है कि अब तुम लोग कहोगे कि सर आप ये बताइए कि अगर मेरी एरे का सम जो है वो पॉजिटिव निकल गया तब हम क्या करेंगे, और ये ट्रिकी क्वेश्चन है। मेन पार्ट तो ये देखो, अगर नेगेटिव है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि तुम और नेगेटिव वैल्यूज डालते जा रहे हो तो तुम्हारी एरे जो है वो नेगेटिव होती चली जा रही है। अगर तुम्हारी तो तुम कभी भी 0 की तरफ नहीं जा पाओगे, तो तुम इसमें कभी भी तुम 0 की तरफ नहीं जा पाओगे, तुम हमेशा माइनस इंफिनिटी की तरफ जाओगे इस केस में। अगली चीज
आती है कि अगर तुम्हारा सम जीरो है ऑलरेडी, तो तुम परफेक्ट कंडीशन में तुम यस प्रिंट कर दोगे। अगर तुम्हारा सम पॉजिटिव आता है तो मैं बात करता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें एक टेस्ट केस जो ऑलरेडी गिवन है वो देख लेते हैं हम, और क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो ये टेस्ट केस दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2 एलिमेंट दिए हुए हैं और उनका सम 1 और मतलब 2 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद मैं खुद का एक टेस्ट केस भी तुम्हें लेके दिखाऊंगा। तो हमें जो एरे दी हुई है वो 2 एलिमेंट्स की दी हुई है। इंडेक्सिंग देखो, इंडेक्सिंग यहाँ 1 से शुरू की, इन्होंने बोला कि पहले वाले का इंडेक्स 1 है, दूसरे वाले का इंडेक्स 2 है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, पहले वाले में 1 दिया हुआ है और दूसरे वाले में 2 दिया हुआ है। अब इनका तुम सम निकालो, सम क्या आ रहा है, सम आ रहा है 3 + 3 आ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अब तुमसे उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला है कि तुम ai में से हर बार i को माइनस कर सकते हो, ठीक है। ai में से तुम हर बार i को माइनस कर सकते हो। तो तुम एरे ऑफ वन की वैल्यू क्या है, a ऑफ 1 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो तुम उसमें से -1 कर सकते हो, देन यू विल रीच 0। सो ये वाला इंडेक्स जो मेरा है, लेट मी चेंज द पेन, ये वाला जो मेरा इंडेक्स है, ये मेरा अब क्या हो जाएगा, मेरा ये इंडेक्स पे वैल्यू 1 थी, अब मैंने -1 कर दिया, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, ith इंडेक्स जो मेरा ये इंडेक्स पहला है 1, और मैं इस इंडेक्स से 1 माइनस कर सकता हूँ, हर बार i को माइनस कर सकता हूँ। ये मेरी i की वैल्यू है हर बार जो चेंज होती जा रही है। यहाँ पे i = 2 है, तो ये a ऑफ i है। a ऑफ i जब 1 है तो वैल्यू 1 दी हुई है, यहाँ पे स्पेशल केस है। और a ऑफ i जब मेरा 2 है तो i की वैल्यू 2 दी हुई है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, यस सर यस यस सर ये जैसे 2 साइज का एरे है, 1 2 एलिमेंट है, तो इसमें a ऑफ 0 लेंगे ना पहले, नहीं नहीं a ऑफ देखो, 0 हो जाएगा 1 1 माइनस 0। नहीं नहीं देखो देखो देखो, जी यहाँ पे सर। क्या दिया हुआ है, ये वाली लाइन देख रहे हो तुम, हाँ ये इसमें दिया हुआ यहाँ है कि से देख एरे रहा हूँ। एरे की इंडेक्सिंग 1 से है, ठीक है। ये देखो, अच्छा एरे की इंडेक्सिंग इन्होंने 1 से ली हुई है, तो i की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है। यस सर यस सर यस और सर, इसके समझ पहले गया। तुम्हें पहले 2 केस ठीक से समझ में आ गया ना, केस 1 और केस 2, जब नेगेटिव होगा और हाँ जब सम 0 होगा। हाँ सर, हाँ सर, ये चीज थैंक यू क्लियर है सर। ना कि क्या नाम है तुम्हारा, अभिजीत श्रीवास्तव। अभिजीत, ये चीज क्लियर है ना तुम्हें कि पहला और दूसरे केस में क्या होगा, क्यों हम नो लिख रहे हो यस यहाँ पे, सर क्यों यस आ रहा है। और अभी मैं तीसरा केस यस। और इलेबोरेट करूंगा तुम लोग के लिए। तो ये चीज तुमने अच्छा पॉइंट आउट किया। देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे हम जेई एडवांस का तुम लोगों ने पेपर जरूर देखा होगा, तो वहां तुम लोग देखते नहीं थे कि कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए रहते थे, इस तरह की चीजें देखी होंगी तुमने, कंस्ट्रेंट्स। तो यही होती है सीपी भी, ठीक है। तो हाँ सर। अब हम लोग, हाँ मैं आगे क्वेश्चन को इलेबोरेट करता हूँ। इंडेक्सिंग 1 से लेके n तक चलेगी। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखो मेरा पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 2 है। इस वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या था, 1 था। इस वाले का इंडेक्स क्या था, 2 था। इनका सम पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है, इनका सम पॉजिटिव आ रहा था, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3 आ रहा था। तो इस वाले जो मेरा a ऑफ 1 है, a ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, और a ऑफ 2 की यस सर। वैल्यू, मेरे a ऑफ 2 की वैल्यू, you can mute yourself and you can unmute whenever you have any doubt. If anyone has doubt, they can ask while in between. They can raise hand or unmute. There are people, executive members are there, they can unmute you. So मेरा a of 1 जो है, a of 1 1 है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इंडेक्स में से मैं i को माइनस करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा 0 हो जाएगा। ये चीज तुम लोग को क्लियर है कि नहीं। जो मेरा एरे है वो a ऑफ 1 से स्टार्ट हो रहा है, मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, a ऑफ 1 और a ऑफ 2। तो हर इसमें इंडेक्स मेरा i की वैल्यू इसमें 2 है, इसमें i की वैल्यू 2 है दूसरे एलिमेंट के लिए, और इसमें i की वैल्यू 1 दी हुई है। तुम लोग कहोगे 0 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि इंडेक्सिंग 1 से करनी है तुम्हें, ठीक है। तो तुम n+1 का एरे बनाओगे, वो भी मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें। अब क्या है कि इस एलिमेंट की वैल्यू 1 थी, a ऑफ 1 तो 1 था, और उसमें से तुमने i को माइनस किया, यानी 1 माइनस किया, तो ये 0 हो गया। अब a ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी, 2 थी, और तुमने उसमें से 2 माइनस किया, क्योंकि i की वैल्यू यहाँ 2 है।
a ऑफ 2 माइनस 2 करोगे तुम, क्योंकि तुमसे मैंने पहले बताया हुआ था, पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, पहले मैंने तुम्हें ये कंडीशन बताई हुई थी कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a ऑफ i में से i माइनस करोगे, और i मेरा जो है वो 1 से लेकर के, मेरा जो i है वो 1 से लेकर के 2 से लेकर के अप टिल n तक जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक। क्लियर है? अब क्या हो रहा है कि दूसरा एलिमेंट भी 0 हो गया, तो कैसे 0 हो गया वो तुम्हें समझ में आ गया। एरे ऑफ 1 तुम्हारा 0 हो गया है, और जो तुम्हारा एरे ऑफ 2 है वो भी तुम्हारा 0 हो गया है। तो बेसिकली क्या हो गया, अब तुम इनका सम लोगे तो वो 0 आ गया, तो जो कंडीशन थी वो तुम्हारी सेटिस्फाई हो गई, तो तुम्हारा यस आ गया है। अब तुम तो कहोगे कि सर ये तो बहुत अच्छा केस था कि आप मान लीजिए आपने सर आपने मान लीजिए कि कुछ इस तरह से एलिमेंट्स लिए, रुको मैं फिर से लिख देता हूँ। मान लीजिए कि सर आपने इस तरह से एलिमेंट्स लिए कि 1 2 3 4 5, आपने इस तरह से एलिमेंट्स लिए, तो और इस वाले एलिमेंट का इंडेक्स 1 है, सिमिलरली इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है। ये सब क्लियर है ना? किसी को ना क्लियर हो तो अनम्यूट करके पूछ सकता है या रेज हैंड कर सकता है। तो तुम कहोगे कि सर इसमें से ये माइनस कर दूंगा, इसमें से ये माइनस कर दूंगा, इसमें से ये माइनस कर दूंगा, तो सब पूरा ओवरऑल सम 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, 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 ये भी। ये तो अच्छा केस है, ठीक है, यहाँ पे यस आ जाएगा। बट अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं मान लो तुमसे बात करता हूँ, लेट्स से कि मैं तुम्हें 1 और 2 दिया हुआ था, क्लियर है या नहीं है? कोई someone from the first year please unmute yourself and answer that this is clear or not, so that तभी मैं आगे बढ़ूंगा। विनय, someone from the first year please raise your hand and tell me कि इतना क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। You can unmute yourself. Yes Abhay, you can unmute yourself and tell us। अबे हेलो। yes you are audible। यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? देखो ठीक है ठीक है, I'll continue ahead। मैं तुम्हें आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगवाऊंगा, तुम लोग थोड़ा पेशेंस रखना बस। तो अब तुमने ये क्वेश्चन देख लिया कि मान लो तुम्हें पहला एलिमेंट अभी तक क्या था, मैं क्वेश्चन को रिवर्स करने जा रहा हूँ, तुम देखना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन की कि सीपी एक्चुअल में होती क्या है, कैसे तुम्हें दिमाग लगाना होता है चीजों में। तुम्हें क्या बोला था मैंने कि तुम क्या कर सकते हो, इस इंडेक्स इसमें 1 से माइनस कर सकते हो, इसमें 2 से माइनस कर सकते हो, हर एक नंबर को उस इंडेक्स से माइनस कर सकते हो, ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, तो मैं क्या इस वाले इंडेक्स को और इस वाले को मैं 2 से देख सकता था, ये वाला इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पे क्या होता कि मैं क्या करता, मैं 2 से 2 माइनस करता एक बार में, तो ये 0 हो जाता, और मैं ये जो 3 है इसमें -1 करता तो ये पहले 2 होता, फिर मैं इसमें -1 करता तो ये 1 हो जाता, फिर मैं इसमें एक और बार -1 करता तो ये 0 हो जाता। तो मेरा पहला एलिमेंट और मेरा दूसरा एलिमेंट दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे, तो 0 + 0 विल बी इक्विवेलेंट टू 0, और मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और मैं यस प्रिंट कर दूंगा। ये चीज तुम लोग को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अगली चीज आती है कि मान लो वही क्वेश्चन दिया हुआ था, अभी तक क्या दिया हुआ था, 1,2 दिया हुआ था, 2 एलिमेंट्स दिए 1,2 करके। अब मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं, अब तुम देखो कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं 2,1, ठीक है, 2,1, इट्स सो इजी। देखो अब 2,1 में क्या होगा कि अब तुम बोलोगे कि सर अब तो हम फंस गए। अब हम इसलिए फंस गए क्योंकि हमें इस इंडेक्स में से हम 2 माइनस कर सकते हैं, और इस इंडेक्स में से सर हम क्या माइनस करें, इस इंडेक्स में से हम 1 माइनस कर सकते हैं। तो सर अब हम लोग कैसे करेंगे, इसका सम, टोटल सम तो 3 आ रहा है, क्लियर है, इतना क्लियर होगा, टोटल सम तो 3 आ रहा है, बट अब तुम्हें वो आइडियल सिचुएशन नहीं मिल रही। पहले तुम क्या कर रहे थे, 1 से 1 माइनस कर रहे थे तो 0 पे आ जा रहे थे, जो टेस्ट केस गिवन था, सैंपल टेस्ट केस, 2 में से 2 को माइनस कर देते रहे थे तो भी 0 पे आ जा रहे थे, तो ओवर और एरे का सम जो था वो टोटल सम तुम्हारा 0 आ जा रहा था, तो तुम यस प्रिंट कर दे रहे थे तब तक। बट अब सिचुएशन चेंज हो गई है, तो अब सिचुएशन चेंज ये हो गई है कि अब तुम्हें सम 3 है, तुम्हें इस सम को घसीट के 0 पे ले जाना है, यू हैव टू मूव दिस सम एंड यू हैव टू मेक द सम ऑफ द एरर 0। तो अब तुम कैसे करोगे, अगर तुम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सोचोगे तो तुम क्या कहोगे कि सर अगर मैं 2 बार -2 कर दूं
मतलब क्या करूं कि इस एलिमेंट को 2 ही रहने दो, और ये जो मेरा एलिमेंट नंबर 2 है ऑफ द एरे विच इज 1, इसमें से अगर मैं दो बार 2 को माइनस करूं, एक बार 2 को मैंने माइनस किया तो क्या हो गया, -1 हो गया, और एक और बार 2 को माइनस किया तो ये -3 हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि अब ये दूसरा एलिमेंट -3 हो गया, पहले एलिमेंट को मैंने टच नहीं किया। इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम हमेशा ही माइनस करो एक इंडेक्स को, इट इज पॉसिबल कि तुम माइनस कर सकते हो बट तुम माइनस नहीं करना चाहोगे। तो ये देखो ये -1 आ गया, देखो ये गलत हो गया। अब तुम इतना क्लियर है कि नहीं? समवन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर प्लीज unmute yourself and tell that this much part is clear or not to you guys. Yes sir, clear है. If anyone sir, has doubt, if anyone has doubt up till here, they can raise their hand and I'll answer your query. If up till now, if you have any query, you can just raise your hand and we will allow you to question. So I assume that there is no doubt. I am moving forward. So 1 second guys. So हाँ, अब मैं तुम्हें ये दिखा रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें 2,1 दिया हुआ है एरे, तो तुम्हें ये वाला इंडेक्स तुम्हारा 1 है, ये वाला इंडेक्स तुम्हारा 2 है, तो तुमने करके देखा तुम्हारा 3 था, तुम देखो यहाँ -1 आ गया, तुम फंस गए तुम यहाँ जाके, तुम्हारी एरे इनिशियली 3 सम था उसका और तुम -1 में पहुंच गए अगर 2 को माइनस करने चले गए। लेकिन अगर तुम्हें एरे तुम एनी नंबर ऑफ टाइम्स तुम एआई में से ये लेट मी क्लियर दिस कि एंड आई विल से दिस अगेन एंड अगेन कि तुम किसी भी एआई में से 1 सेकेंड गाइस, तुम किसी भी एआई में से आई को जितनी भी बार चाहो उतनी बार माइनस कर सकते हो, ठीक है? तो अब तुम क्या करोगे, देखो सम 3 है, ठीक है? अब मैं तुम्हें दिखाता हूं ट्रिक क्या है। ट्रिक यहाँ पे ये है कि मेरा टोटल सम 3 है, अब मैं सेकेंड एलिमेंट को नहीं छूंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं सेकेंड एलिमेंट को नहीं टच कर रहा हूं, मैं सेकेंड एलिमेंट को एज इट इज रहने दे रहा हूं। दिस इज द सेकेंड इंडेक्स वेयर आई की वैल्यू इज इक्वल टू 2 एंड जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है मैं उस पर चेंजेस करूंगा। तो 2 में से मैं 1 माइनस करूंगा, पहले तो a ऑफ i में से 1 i माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। अब मैं 1 में से क्या करूंगा, 1 माइनस कर दूंगा एक और बार, तो अब ये 0 आ जाएगा, ठीक है? अब मैं 1 में से एक और बार 1 माइनस, मतलब अब मेरे पास 0 आ गया, a ऑफ i जो है वो 0 हो चुका है, जो पहला एलिमेंट है वो मेरा 0 हो चुका है। एक और बार मैं -1 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब ये देखो ये -1 हो गया ब्रो, दिस इज -1। सो अब तुम क्या देख सकते हो कि मेरा ये जो पहले इंडेक्स पे एलिमेंट है ये जो पहले इंडेक्स पे एलिमेंट है ये -1 है, और जो दूसरे इंडेक्स पे एलिमेंट है वो 1 है। तो -1 + 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। देखो हमने 0 कर लिया। अब मैं तुम्हें कुछ और क्वेश्चंस दिखाता हूँ, कुछ और सैंपल क्वेश्चंस। अब लेट्स से मैं थोड़ी सी बड़ी एरे ले लेता हूँ। लेट्स से कि मतलब लेट्स से यू हैव दिस एंड यू हैव let's say you have 1, ठीक है? Let's say you have got 3 elements in the array and the total sum is coming to be 13। अब मुझे इस सम को किसी भी तरह 0 ले जाना है, मुझे इस सम को 0 बनाना है। अगर मैं 0 बना सकता हूं तो मैं यस प्रिंट करूंगा, ठीक है? जैसे कि देखो मैंने इस 2,1 में तुम्हें 0 बना के दिखा दिया, तो तुम उसमें यस प्रिंट कर दोगे। क्लियर है? अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल सम 13 आ रहा है। मैं तुमसे ये कह रहा था कि पहला जो इंडेक्स है वो 1 है, ठीक है? पहला तो इंडेक्स 1 है, दूसरा इंडेक्स क्या है, 2 है यहाँ पे, तीसरा इंडेक्स क्या है, 3 पे। मैं पहले एलिमेंट से 1 माइनस कर सकता हूं क्योंकि उसका i 1 है, तो इन सब का i दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? ये i है और ये a ऑफ i है। क्लियर? ये i है और ये a ऑफ i है, तो ये a ऑफ i दिया हुआ है। तो अब क्या हो रहा है कि तुम देखो, तुम किसी भी ai में से i को कितनी भी बार माइनस कर सकते हो। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुमने क्या ये ऑब्जर्व किया कि अगर तुम 1 को ही बार बार माइनस करो पहले एलिमेंट में से, देखो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि केस 1 जो था, जब तुम नेगेटिव आ रहे थे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात क्योंकि मैं थोड़ा कंक्लूजन पार्ट पे जा रहा हूं। अगर तुम्हारा सम 0 है तो तुम यस प्रिंट करोगे क्योंकि तुम ऑलरेडी 0 हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या तुम इस एरे का सम जो है वो 0 कर सकते हो इस कंडीशन से कि तुम ai में से i माइनस करो। तो अगर सम 0 है तो तुम यस कर दोगे ऑलरेडी। अगर तुम नेगेटिव हो तो तुम और माइनस करते जाओगे,
और चीजें और माइनस करते जाओगे तो तुम क्या करोगे, तुम माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाओगे, तुम जीरो की तरफ टेंड नहीं करोगे, तुम माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करोगे, तो तुम नो प्रिंट कर दोगे। बट प्रॉब्लम कब आ रही है, प्रॉब्लम तब आ रही है जब तुम्हारा सम एरे का पॉजिटिव है, जब तुम्हारा केस 3 आ रहा है कि एरे का सम पॉजिटिव है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो 13 आ रहा है सम, टोटल सम 13 है। अगर मैं इस एलिमेंट में से, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इस एलिमेंट में से 13 माइनस कर दो, जो पहला वाला एलिमेंट है उसमें से 1 को 13 बार माइनस कर दो, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं कि 7 माइनस 1 कब तक कितनी बार माइनस करो, 13 टाइम्स माइनस करो 1 को पहले एलिमेंट में से, तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 13 आ जाएगा। 7 माइनस 13 कितना होता है, 7 माइनस 13 हो जाएगा हमारा -6, ठीक है। तो अब मेरा पहला, मेरा एरे दी हुई थी मेरे को 7, 5, 1, ठीक है, और इस एरे का सम था 13, क्लियर है इतना। अब क्या हुआ कि इस एलिमेंट को मैंने 13 बार माइनस किया, टोटल जो सम था उससे माइनस कर दिया, तो मैंने इसको 13 बार माइनस किया तो कितना आ गया, ये -6 आ गया। और ये एलिमेंट जो है ये 5 है, ये एलिमेंट जो है ये 1 है। अब तुम इनका सम निकाल के देखो सरा, 6 + 5 + 1 कितना आ रहा है, यू आर गेटिंग -6 + 5 + 1, सो क्या होगा आंसर, 0 हो जाएगा। देखा तुमने ट्रिक, यही ट्रिक थी कि तुम हर बार पहले इंडेक्स में से तुम्हें जितना भी घटाना है, अगर देखो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं यहाँ पे, सो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर अगर मेरी वैल्यू जो है वो 0 पे है, लेट्स से दिस इज 0, दिस लाइन इज 0, लेट्स से दिस लाइन इज 0, सो अगर मेरी जो सम है, अगर मेरा जो सम है, अगर मेरा सम नेगेटिव आ रहा है तब मैं नो प्रिंट करूंगा। अगर मेरा सम पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अगर मेरा सम 0 आ रहा है, लेट्स से सम इज 0, इफ यू आर ऑन दिस लाइन एंड सम इज 0, अगर तुम्हें जो एरे दी हुई है उसका सम 0 आ रहा है ऑलरेडी, तो तुम यस प्रिंट करोगे। बट अगर तुम्हारा सम जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो तुम क्या करो, उतने नंबर ऑफ टाइम्स 1 को माइनस कर दो उसमें से। मतलब जैसे 7, 5, 1 दिया हुआ था, इसका सम कितना आ रहा था, 13 आ रहा था, तो मैंने तुमसे कहा कि पहले एलिमेंट में से तुम 13 को माइनस कर दो, 13 को माइनस कर दो, यानी कि 13 टाइम्स 1 को माइनस कर दो। एक बार मैं क्लियरली लिख के दिखा देता हूं। मैं तुमसे ये कह रहा था कि 7 में से 1 को माइनस करते जाओ, 1 को माइनस करते जाओ, कब तक माइनस करते जाओ, और ये तुम कर सकते हो। ai क्या है, a ऑफ 1 इज 7, और i क्या है, i यहाँ पे है 1, तो 7 में से 1 माइनस कर दो, फिर तुम 6 आ जाएगा, 6 में से भी 1 माइनस कर दो। इस तरह तुम कब तक माइनस करो, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, 13 टाइम्स माइनस कर दो। 13 टाइम्स तुम जब 1 को माइनस कर दो, किससे माइनस करो, मतलब टोटल सम से माइनस करके देखो। तो जब तुम 7 में से 1 को माइनस करते हो 13 टाइम्स, मतलब कि 7 माइनस 13 टाइम्स 1 को माइनस कर रहे हो, मतलब पहले इंडेक्स में से 13 टाइम्स तुम जितना भी सम है उसको माइनस कर रहे हो, तो ये -6 आ रहा है। तो देखो -6 + 5 जो मेरा सेकेंड एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, तो +1, तो देखो ये सम 0 हो जा रहा है। अब मैं कोई रैंडम सैंपल और तुम्हें दिखा देता हूं, जैसे कि लेट्स से कि मेरा पहला एलिमेंट 25 है, नेक्स्ट एलिमेंट इज लेट्स से 15, एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज लेट्स से 3। एक सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस, next element is 15 and next element is 3, so 43, you are getting what, 43 if I am not wrong, yes you are getting 43। so मैं क्या कह रहा हूं कि तुम पहले एलिमेंट में से ये इंडेक्स 1 है तुम्हारा, ये इंडेक्स तुम्हारा 2 है, ये इंडेक्स 3 है, मतलब 1 के आगे जितने भी इंडेक्सेस आ रहे हैं जो कि 2 से लेकर के अप टिल n हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तुम उनको इग्नोर कर दो, जस्ट इग्नोर द रेस्ट ऑफ द पार्ट, एक बाकी एलिमेंट्स को इग्नोर कर दो। तुम इस एलिमेंट में से 43 टाइम्स 1 को माइनस कर दो, मतलब 25 माइनस 1 इंटू 43 कर दो, दैट इज द सम विच इज द सम ऑफ द एरे, विच इज द सम ऑफ एरे। सो व्हाट यू विल गेट इज, अगर मैं माइनस करूं 25 में से, सो यू विल व्हाट यू विल गेट इज -18, ठीक है, -18 मिल रहा है तुम्हें। अब तुम्हें दिखाता हूं, 25 दिया था मेरे पास, 13 दिया था, 15 दिया था, और मेरे पास 3 दिया हुआ था, ठीक है।
और मैंने क्या किया कि मैंने 40 इसमें से 1 को ही माइनस करता गया 43 टाइम्स, दैट इज द टोटल सम, टोटल जितना सम था उतनी टाइम्स माइनस करता गया। तो मैंने क्या किया 25 में से 43 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास हो गया -18 आ गया। व्हाट आई विल गेट इज -18। क्लियर है? तो अब पहला एलिमेंट क्या हो गया मेरा, -18 हो गया। अगला एलिमेंट क्या है, 15 है। अगला एलिमेंट क्या है, 3 है। अब तुम इन तीनों को ऐड करो, -18 + 15 + 3, सो व्हाट यू विल गेट 0। तो तुमने देखा, तुम पहले एलिमेंट में से वो पूरे सम को माइनस कर दो तो तुम हर बार न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो तुम 1 को यूज करके तुम बहुत स्मार्टली इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब मैं तुम्हें समझाता हूं। अब मैं जा रहा हूं तुम्हें नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाने। अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। नंबर लाइन क्या है, ये मेरा 0 है। अगर मेरा सम, यहां मेरा सम इसके नीचे नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, और यहाँ पे 0 है। अगर मेरा ऑलरेडी 0 आ रहा है सम तो मैं यस करूंगा। अगर मेरा नेगेटिव आ रहा है तो मैं नो क्यों करूंगा, क्योंकि अगर मैं और नेगेटिव वैल्यूज को डालता जाऊंगा और माइनस करता जाऊंगा तो वो -इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। 1 सेकेंड। तो वो -इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लगेगा, तो वो कभी भी 0 की तरफ नहीं जा पाएगा, तो मैं नो कर दूंगा। अगर मैं कभी भी पॉजिटिव आ रहा हूं तो मैं उसको हर बार 1 से माइनस करता जाऊंगा, -1 -1 -1। मान लो तुम्हें मतलब एक पॉजिटिव मतलब पहाड़ बनाना सही नहीं होगा यहाँ पे। लेट से कि तुम्हें ये यहाँ तक नंबर लाइन की किसी भी स्केल पे तुम लेट से वैल्यू तक पहुंच गए हो, ठीक है, ये नंबर लाइन है। मान लो तुम x तक पहुंच गए, x से सम पॉजिटिव वैल्यू। सो तुम क्या करो, तुम हर बार इसमें से -1 करते जाओ, -1 करते जाओ। ये हल्का टूटेगा, थोड़ा टूटेगा और टूटेगा। बार बार तुम क्या करो, -1 करते जाओ, -1 करते जाओ, -1 करते जाओ, हर बार -1 करते जाओ। तो तुम हर बार जब -1 करते जाओगे तो तुम 0 पे पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब ये है, अब मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। मैं कंक्लूड ये कर रहा हूं कि अगर मेरा पहला केस, अगर मेरा ओवरऑल सम नेगेटिव आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, नो प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि कोई भी कभी भी चांस नहीं होगा कि मैं सम को 0 कर पाऊं, क्योंकि मैं एक नेगेटिव वैल्यू में ऑलरेडी माइनस करता चला जा रहा हूं तो मैं और नेगेटिव हो जाऊंगा, मैं कभी 0 नहीं बन पाऊंगा। सेकेंड चांसेस कि अगर अगर मेरा जो सम है वो ऑलरेडी 0 है, ऑलरेडी 0 है तो मतलब हम बेस्ट परफेक्ट केस में है तो हम यस कर देंगे। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आई सेड इज कि अगर तुम्हारा सम कुछ पॉजिटिव आ रहा है, मान लो इट इज वेरी बिग, इट इज वेरी वेरी बिग पॉजिटिव नंबर, वेरी बिग, इट इज वेरी बिग, बट तुम हर बार तुम उससे पहले इंडेक्स को माइनस करते जाओ, तुम पहले इंडेक्स में हर बार -1 करते जाओगे तो तुम उस पहाड़ को तोड़ दोगे। तुम्हारा ये अगर ये 0 की बेस लाइन है और तुम्हारा ये नंबर दिया हुआ है कुछ भी, तो तुम हर बार इसमें से -1 करते जाओ, -1 करते जाओ, -1, तुम एक नीचे आओगे, एक नीचे आओगे, हर बार नीचे आते जाओगे, और धीरे धीरे तुम नीचे आते आते तुम 0 को टच कर जाओगे। और जैसे ही तुम 0 को टच करोगे इसका मतलब तुम यस कर दोगे प्रिंट। ये चीज क्लियर है या नहीं है? तो थर्ड केस में कंक्लूड कर रहा हूं कि अगर 0 है, अगर पॉजिटिव नंबर, अगर तुम्हारी एरे का सम पॉजिटिव भी आ रहा है तो भी तुम उसको 0 ले जा सकते हो, क्योंकि तुम बार बार -1 करते करते तुम उसको 0 ले जा सकते हो। सो द चैट इज ओपन फॉर डिस्कशन। सो बेसिकली यू कैन रेज योर हैंड अगर किसी को कुछ ना समझ में आया अभी तक। यू कैन रेज योर हैंड एंड वी विल अनम्यूट यू, एंड अगर किसी को अभी तक कुछ ना समझ आया तो। यस अबे। सर वो काफी बढ़िया लॉजिक था सर, वो मतलब अप्रिशिएट करना चाहते थे वो जो पॉजिटिव नंबर्स आपने जो 1 माइनस किया पहले वाले से सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 1 से लेके n तक। मैं ये कह रहा था कि 2 से लेके, मैं तुम्हारी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा यहाँ पे। मैं ये कह रहा था कि मेरी एरे जो है मेरे को 1 2 3 से लेकर के अप टिल n तक गई, ठीक है। तो Yes. अब हुआ क्या, तुम इन एलिमेंट्स को, तुम कुछ इंडेक्सेस को तुम इग्नोर कर दो, तुम हर बार 1 को माइनस करते जाओ ना यार। पहले एलिमेंट में से हर बार तुम 1 को माइनस करते जाओ तो तुम उसको धीरे धीरे छोटा करते करते नीचे लाते लाते तुम अपने सम को 0 पे ले आओगे। क्लियर है? यस सही, बहुत बढ़िया है। एनीवन एल्स? जिसको, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तुम पूछ सकते हो। वी आर फ्री, वी आर हियर टू आंसर योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन ओनली। You can just raise your hand or you can just ask the doubt. Anyone from the girls if they want to ask any question?
सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। एकदम क्लियर, परफेक्टली समझ आया ना तुम लोगों को? यस सर, लास्ट वाला बहुत अच्छे से। हाँ, लास्ट वाला ही मेन था। बट अच्छा, कोई भी एक अपने आप को अनम्यूट करके मुझे ये बता दो कि तुम्हें इसमें से क्वेश्चन में से सीखने को क्या मिला, मतलब क्या क्या लगा इस क्वेश्चन को देख के, क्या लगा तुम्हें? हाउ डिड यू फील अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन? जो मैंने अप्रोच बताया उसको, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस क्वेश्चन? अगर कोई बता सके कि क्या कंक्लूजन हो रहा है, क्या या क्या देख के क्या लगा कि सीपी की तरफ क्या लग रहा है? अभय, कैन यू आंसर? सर इसमें सीपी की कोडिंग तो बाद में करेंगे, पर इसमें लॉजिक सर सीखना मतलब। देखो, तुमने लॉजिक की बात करी, लॉजिक की बात। हाँ, अंकुर रेज। मैथ है, सीक्वेंस बनाना है बस सीपी पे। देखो, तुम्हें पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है। सीपी थोड़ी सी मैथमेटिकल है, थोड़ी सी सीपी क्या है कि ये मैंने पहला प्रॉब्लम इसी ले लिया क्योंकि मैंने तुम्हें, देखो, बेसिक नंबर थ्योरी, बेसिक नंबर लाइन ही थी जो तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ा होगा, वही एक तरह से वही था, बस तुम्हें इनडायरेक्टली वो दिया नहीं हुआ था। बट तुम देखो कि ये बेसिक मैथमेटिक्स है, सीपी से डरो मत, यही हम कहना चाहते हैं। हमने अभी अभी आगे अब और क्वेश्चंस लेंगे। अभी आगे मैं तुम्हें मॉडुलस पढ़ाऊंगा, आज मॉडुलस पढ़ाऊंगा और उस पे आगे ले जाऊंगा चीजों को। तो मैं यही तुम लोगों को कह रहा हूँ कि तुम लोग जितने भी लोग आए हो, आई अप्रिशिएट यू। और हम लोग तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे सीपी जो होती है थोड़ी सी मैथमेटिकल अप्रोच होती है उसकी तरफ, थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग होती है, कुछ लॉजिक लग रहा होता है, कुछ तुम्हें कई बार पैटर्न देखना पड़ेगा। अभी मैं आगे भी क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं, तो हम उन्हें भी लेंगे। तो अगर तुम लोग इस क्वेश्चन से क्लियर हो, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे दिया, इफ यू गाइस आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन, कैन वी मूव अहेड? यस सर। यस सर। अगर किसी को डाउट हो, या किसी को शर्माने की बात नहीं है, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत गिने चुने लोग आए हुए हैं, तो अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम बता सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो देन यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Shall we move on to the next question? Yes sir. Okay. So I hope तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन, अच्छा चलो, मैं एक चीज करना भूल गया, अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहली बात तो यार ये देखो, मैं जो है Geeks for Geeks आईडी यूज कर रहा हूँ। मैं कोई भी वो, जैसे कि तुम्हारा डेव C++ हो गया, या विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, या सबलाइम टेक्स्ट, यहाँ पे इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ऑनलाइन आईडी पे दिखा रहा हूँ। ये Geeks for Geeks की आईडी है, ऑनलाइन कंपाइलर है। यहाँ पे मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सबमिट करके दिखाऊंगा, ठीक है? ये टेस्ट केस दिया हुआ था, मुझे क्या दिया हुआ है? 2 टेस्ट केस दिए। पहले टेस्ट केस में मुझे एलिमेंट दिया हुआ है 1 और -1, दूसरे टेस्ट केस में मुझे 2 एलिमेंट दिए, मतलब पहले टेस्ट केस में मुझे 1 एलिमेंट दिया हुआ है जो कि -1 है, सेकंड टेस्ट केस में मुझे 2 एलिमेंट दिए हुए हैं 1 और 2। तो अब मैं इस टेस्ट केस को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? कंट्रोल C, यहाँ देखो मैंने इनपुट में कंट्रोल V कर दिया, इतना क्लियर होगा तुम्हें। 2 टेस्ट केसेस हैं, पहले टेस्ट केस में 1 एलिमेंट है -1, दूसरे टेस्ट केस में 2 एलिमेंट है 1 और स्क्रीन, सब कुछ स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। यस, ठीक है। तो दूसरे वाले में 2 एलिमेंट है 1 और 2। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये टी क्यों लिया मैंने इनपुट पहले? अच्छा, एक चीज और, तुम लोग अगर किसी ने C++ पढ़ने की कोशिश करी होगी तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वगैरह पढ़ी होगी, या तुम लोग जो CS वाले हैं, या फिर अगर किसी ने प्रोग्रामिंग C में पढ़ी हो, या किसी जावा में भी, या किसी और लैंग्वेज में भी, तो तुमने देखा होगा कई बार काफी सारी हेडर फाइल्स या फिर लाइब्रेरीज ऑलरेडी तुम्हें इंक्लूड करने के लिए कोड लिखना पड़ता है। हैश इंक्लूड math.h, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, हैश इंक्लूड, इस तरह की काफी चीजें लिखनी पड़ती है। लेकिन अगर सीपी कर रहे हो तुम C++ में, देखो C++ में मैं कर रहा हूँ, C++14 C++ का एक वर्जन है, तो तुम क्या लिखोगे? हैश इंक्लूड bits/std_c++.h। इससे तुम्हारी सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड हो जाती है। और ये जितना कोड है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये जितना कोड है, दिस मच जो कि हाईलाइटेड है, जो कि मैंने कमेंट करा हुआ है, ये जितना पार्ट है ये मैंने फास्ट इनपुट आउटपुट ले लिया है, ठीक है? दिस पार्ट इज फॉर फास्ट इनपुट आउटपुट। इस पे मैं क्लास लूंगा, अभी तुम मुझे इस पे क्वेश्चन मत पूछो, मैं तुम्हें
फ्यूचर में क्लास लूंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। आज मुझे तुम आज मेरी बात मान लो और इस पे आज तुम अज्यूम करके चलो कि ये तुम्हें लिखना ही पड़ता है, ठीक है। इस पे हम कभी आगे चर्चा करेंगे जब तुम लोग और सीख लोगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखो इंट n लूंगा और i लूंगा और सम के लिए s इज इक्वल टू 0 ले लूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं n को इनपुट करा लूंगा। इतना देखो ये क्लियर है। हम तुम्हें कोड बाद में सप्लाई कर देंगे, बाद में हम तुम्हें कोड दे देंगे, ठीक है। और अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई स्टार्ट फ्रॉम नहीं, अब मुझे पता चल गया कि एरे जो है वो, अच्छा कोई ये बताओ, समवन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टेल कि एरे जो है वो, एरे हम क्या एरे कितने साइज की डिक्लेयर होगी, ये कोई फर्स्ट ईयर से बता सके तो कोई आंसर करना चाहेगा कि एरे कितने साइज की डिक्लेयर होगी। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। 1D एरे ही रहेगी सर। हाँ हाँ, एरे कितने साइज की होगी, एरे का साइज कितना होगा? n-1। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो। n-1। कोई और बोलना चाहेगा? n ही होगा सर, 1 से शुरू होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चलो नोटपैड पे आ जाता हूँ, मतलब वन नोट पे आ जाता हूँ। अगर तुम कह रहे हो कि एरे जो है वो, अगर एरे n तक का डिक्लेयर होता है तो क्या होता है तुम्हारा एरे, अगर n तक का डिक्लेयर होता है, लेट्स से कि n की वैल्यू 3 है, छोटे टेस्ट केस, छोटे एग्जांपल ले रहा हूँ, n की वैल्यू 3 है, तो एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2, यही इतना ही हो पाता है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं तुम्हें? तुम लोग आंसर करो। इतनी एरे डिक्लेयर हो पाती है ना, 3 एलिमेंट्स। यस यस। अब इसमें ट्रिक क्या थी, तुम्हें अगर n3 दिया हुआ है तो तुम्हारे पास a ऑफ 3 भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि i की वैल्यू यहाँ 3 तक जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू 1 से, i की वैल्यू 1 सेकेंड, इसमें i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के i की वैल्यू 2 फिर 3 तक जाएगी, तो इसीलिए एरे जो है 3 तक का डिक्लेयर होगा। तो अगर 2 तक का तुम डिक्लेयर करते हो तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो अगर तुम्हें 3 तक का अगर तुम्हें 3 तक चाहिए थे इंडेक्स, तो तुम क्या करोगे, n+1 का डिक्लेयर करोगे, एरे ऑफ n+1 डिक्लेयर करोगे। अगर जैसे कि पहला टेस्ट केस था, पहला टेस्ट केस या दूसरा टेस्ट केस मान लेते 1,2 दिया हुआ था, तो तुम्हें एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, 1 सेकेंड गाइस, I made a mistake, array of 1, array of 2, सो बेसिकली एरे ऑफ 1 यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये क्लियर है, और एरे ऑफ 2 यहाँ पॉइंट कर रहा है। ये तुम्हारा एरे ऑफ 0 जो है वो वेस्ट हो गया, इसको यूज नहीं किया तुमने। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, एरे ऑफ 3 डिक्लेयर करोगे ना, तभी तो तुम्हें 3 इंडेक्सेस मिल पाएंगे, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2। यानी कि तुम्हें जितनी भी साइज दी होगी तुम उससे एक ज्यादा का एरे डिक्लेयर करोगे। अगर n+1 तक का डिक्लेयर करोगे तभी तो एरे ऑफ 0 से लेकर के अप टिल एरे ऑफ n तक आ पाओगे। अगर तुम अगर एरे ऑफ n, 1 सेकेंड, अगर तुम एरे ऑफ n को डिक्लेयर करते हो, तो तुम्हें क्या मिलता है, एरे ऑफ 0 से लेकर के अप टिल एरे ऑफ n-1 मिलता है, क्योंकि एक इंडेक्स तुम्हारा 0 भी हो जाता है उसमें, और ये टोटल एलिमेंट्स को काउंट करोगे तो ये टोटल n एलिमेंट्स आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हें क्योंकि एक एरे ऑफ n भी चाहिए, a ऑफ n भी चाहिए, ये 1 है, n-1, एरे ऑफ n भी चाहिए, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे n+1 लेना पड़ेगा, तभी तो तुम n तक जा पाओगे। तो यहाँ पे तुम साइज जो है वो n+1 तक लोगे। क्लियर है इतना? अब मैं कोड पार्ट पे आ जाता हूँ, इंट a ऑफ n+1, ठीक है सर। हाँ सर एक डाउट है सर, ये a0 में तब भरेंगे क्या? तो हमको कुछ ऐसा करना होगा कि वो पहले से ही भरा रहता है। तुम a ऑफ 0 को इग्नोर कर दोगे ना, a ऑफ 0 में भरने की जरूरत नहीं है। देखो कोड दिख रहा है तुम्हें, मैं a ऑफ 0 को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सपोज जब हम इनपुट लेंगे यूजर से, तो a0 में कुछ ना कुछ तो इनपुट जाएगा ही, जो भी पहला एलिमेंट वो यूजर देगा। नहीं, नॉट नेसेसरी, गार्बेज वैल्यू रहेगी a ऑफ 0 में, क्योंकि मैंने कुछ भरा नहीं ना, मैंने n इनपुट्स लिए। देखो 1 से लेके n+1 का डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट ये है मेरा कि एरे ऑफ 0 जो है वो मेरा वेस्ट हो जाएगा, मतलब वेस्ट नहीं कह सकते, मुझे उसको इग्नोर करना है, ठीक है। यू हैव टू इग्नोर इट, एरे ऑफ 0 को इग्नोर करना है, और 1 से लेके n तक तुमने सारे एलिमेंट्स फिल कर लिए। अब तुम क्या करोगे, तुम एक लूप और चलाओ,
1 second guys, sorry, in I1 से start होगा, I is less equal to n, and then what I will do, sum is equal to, wait, I should use sum instead of, sum is equal to sum plus a of I. ये तरीका तुम्हें पता है ना एरे का सम निकालने का, अगर तुम्हें सम निकालना है तो तुम इस तरह से सम निकल जाएगा। यस हाँ, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट तक तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ इफ एल्स करना है। अगर मेरा सम कभी भी 0 है या 0 से ज्यादा है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं यस को यस प्रिंट करूंगा, मैं सी आउट कर दूंगा यस। एंडल लाइन चेंज करने के लिए होता है, अदरवाइज अगर मेरा सम नेगेटिव आ रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं कि इफ 0 और पॉजिटिव सम, तो मैं क्या करूंगा, मैं वैसे करूंगा। एल्स में क्या करूंगा, मैं एल्स में मैं सी आउट कर दूंगा नो, क्योंकि अगर मेरा नेगेटिव सम आ रहा है तो ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। अब देखो मैं रन करा रहा हूँ, देखो नो और यस आया है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में भी देखो नो और यस आ रहा है। अब मैं इसको तुम्हें सबमिट करके दिखाता हूँ, कोड शिफ्ट है, कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी, देखो अब तुम यहाँ पे आए, जैसे मेरी आईडी बनी हुई है। अब क्या होगा कि ये देखो नीचे सबमिट बटन है, तो तुम सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, ये देखो ये सबमिट क्लिक हो लिया। यहाँ पे मैंने मेरी लैंग्वेज मैंने C++14 चूज की हुई है, ठीक है। C++14 एक C++ का वर्जन ही है। अब मैं कंट्रोल भी करूंगा, मैंने अपने कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। पहले एक बार मैंने रफली ड्राई रन करा लिया, सोच लिया, समझ लिया। अब मैं यहाँ पे देखो ये सबमिट बटन है, मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है बट इट विल गिव। देखो ये सारे टेस्ट केसेस पास हो गए फर्स्ट ईयर। Yes, तुम sir. लोग आवाज आ रही है ना सही से? विनय, यस यस सर। विनय, वंशिका, हाँ आवाज आ रही है, कंटिन्यू। हाँ ठीक है। आवाज आ रही है। देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, हमें ग्रीन टिक मिल गया, सारे सब टास्क और टास्क पास हो गए। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही था, ठीक है। अब शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया तो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, हमारे पास आगे भी और सेशंस होते रहेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लग गया है, बट तुम्हें मजा आया होगा, तुम्हें काफी एक्साइटिंग लगा होगा कि हाँ कैसे प्रॉब्लम को मैंने अप्रोच किया। अब अच्छा, तुम लोगों ने मॉडुलस के बारे में पढ़ा है फर्स्ट ईयर में? मतलब तुम लोग मॉडुलस को जानते हो, मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया है अभी तक? यस सर। मॉडुलस ऑपरेटर अगर कोई ना जानता हो तो मैं यही कहूंगा कि मॉडुलस ऑपरेटर यूज Yes, होता है sir. तुम्हारा, मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा तुम्हारा यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। 1 सेकेंड। अब देखो मॉडुलस ऑपरेटर, जैसे कि अगर मैं ए को मॉड कर रहा हूँ बी से, ठीक है, ये मॉडुलस ऑपरेटर है। बेसिकली मैं वहां तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। जैसे कि ये होता है मॉडुलस ऑपरेटर को मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये होता है मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। अगर ए को बी से मॉड कर रहे हो, जैसे तुमने मतलब क्या किया कि, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जितनी बार डिवाइड करोगे वो आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या आता है, रिमाइंडर आता है। यहाँ कितनी बार डिवाइड किया जाता है, नीचे रिमाइंडर आता है। तो मॉडुलस क्या देता है कि बी को, मतलब ए को बी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो आ रहा होगा वो मेरा मॉडुलस देता है। जैसे कि अगर मैं 3 mod 2 करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, कोई आंसर करेगा फर्स्ट ईयर से? 1 1 आएगा, ठीक है। 1 हाँ, 4 mod 2 करूंगा कितना आएगा? 0। 0 0 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? सर। जीरो आने का रिमाइंडर मतलब, 0। इसका मतलब क्या है? इसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है ना कुछ? जीरो आने का मतलब क्या है?
कि वो परफेक्टली डिवाइड कर दे रहा है। Yes. मतलब Yes, 2 इज अ sir. फैक्टर ऑफ 4, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। यस अच्छा कोई ये बताएगा कि अगर मान लो मैंने a मॉडुलस b किया, ठीक है, मतलब कि मैंने क्या किया कि ये चीज की b, यहाँ पे मेरा a है, तो यहाँ पे मेरा जितनी बार डिवाइड होगा वो आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब कोई मुझे ये बताएगा कि रिमाइंडर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, क्या हो सकते हैं रिमाइंडर की, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, कोई ये आंसर करना सर चाहेगा? 0 हाँ हाँ, सर 0 to a, लेकिन a b से लेस होगा तब वही केस रहेगा। काफी क्लोज है, थोड़ा और सोच के जवाब देना चाहेगा कोई? काफी क्लोज है, काफी क्लोज आंसर है। अगर लड़कियों में से कोई आंसर देना चाहे। कोई भी आंसर करो, गलत सही कुछ भी बोलो, बट बोलो। 0 to n minus 1. हाँ बिल्कुल, विपुल ने सही जवाब दिया, सही जवाब है। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, तुम लोग भी जानते होगे कि जब तुम क्या कर रहे हो यार, देखो अगर तुम 3 को 2 से मॉड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 3 को 2 से मॉड कर रहे हो 1 आ रहा है, 4 को 2 से मॉड कर रहे हो तो देखो 0 आ रहा है। अगर वो परफेक्टली डिविजिबल है तो 0 आ रहा है। अगर तुम 2 को 2 से मॉड करके देख लो तो कितना आ रहा है, 2 को 2 से मॉड करोगे तो 0 आ रहा है। अब तुम 5 को 2 से मॉड करके देख लो कितना आ रहा है, 5 को 2 से मॉड करके देख लो 1 आ रहा है। इसका मतलब अगर तुम 2 को ले रहे हो तो क्या आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है। उसी तरह अगर अगर तुमने 2 को लिया, अगर तुम किसी भी नंबर को 2 से मॉड कर रहे हो, अगर तुम किसी भी नंबर को 2 से मॉड कर रहे हो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे यूज हो सकता है। अगर 2 से मॉड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है, यानी कि 0 से लेकर के अप टिल n-1। तो यानी कि अगर मैं अब n-1 नहीं b-1, मतलब 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए। अगर मैं कहता हूं कि मैं किसी भी नंबर को मैं x से मॉड कर रहा हूं, ठीक है, मैं x से मॉड कर रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा, 0 1 2 अप टिल वेयर, अप टिल x-1। ये चीज क्लियर है कि नहीं फर्स्ट ईयर? ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए तुम्हें, आगे बहुत यूज होगी, ठीक है। शैल वी मूव अहेड, क्वेश्चंस लगवाएं? अगर तुम लोग रिस्पॉन्ड करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन दीजिए सर। चलो आओ क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ही करते हैं। देखो, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस अगेंस्ट हिज फ्रेंड, शेफ हैज डिसाइडेड दैट ही विल ओनली वॉक इन लार्ज स्टेप्स। रुको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, 1 सेकेंड। In order to establish dominance among his friends, Chef has decided that he will only walk in large steps of length exactly k feet. However, this has presented many problems in Chef's life because there are certain distances that he cannot traverse. Example, अगर लेंथ 5 है और उसे 12 का डिस्टेंस कवर करना है तो वो नहीं कर सकता कवर, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। तो शेफ हैज अ स्ट्रिक्टली प्लान दैट ही फॉलोज on most days, but now he is worried that some of those distances may become impossible to cover. अब तुम्हें n distances दिए हैं, तुम्हें बताने की कौन से distances cover नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे तुम्हें k क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, मतलब 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये चीज क्लियर है कि नहीं? जो टी टेस्ट केसेस है, मतलब यहाँ पे एक ही टेस्ट केस है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट केस दिया हुआ है, और तुम्हें n की वैल्यू 5 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दिए हुए हैं, और तुम्हें k की वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट ईयर आवाज आ रही है? रिस्पॉन्ड कर दो अगर आवाज आ रही है तो। Yes, sir. ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसको देखो और मुझे एक पैटर्न ऑब्जर्व करके बता दो यार। अगर कोई बता दे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। देखो k की वैल्यू 3 है, यहाँ पे k की वैल्यू 3 है, और k की वैल्यू को देखो और इन सारी वैल्यूज को देखो, इन एलिमेंट्स को देखो,
3 को देखो और सारे एलिमेंट्स को देखो और बताओ कि क्या हो रहा है। कुछ भी गलत सही कुछ भी आंसर दो, मुझे आंसर चाहिए तुम लोगों से। तो यदि के की मल्टीपल वैल्यू, हो तो, हाँ यदि इनका मल्टीपल है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ, अगर मल्टीपल है तो क्या प्रिंट करना है? 1। 1 और नहीं है तो 0। क्लियर है? बाकी लोगों को क्लियर है ये चीज? किसने आंसर किया था ये? बिल्कुल। ओ ठीक है, तो ये चीज क्लियर है ना फर्स्ट ईयर? आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। जो तुम ही लोगों के बीच में से आंसर आया है Yes. कि तुम लोगों के बीच में से तो तुम्हें दिखा पैटर्न दिखा कि नहीं? क्वेश्चन में पैटर्न देखो, के की वैल्यू 3 हुई है और बाकी तुम्हें जो भी नंबर्स दिए हुए हैं तुम देखो कि अगर 12 डिविजिबल है तो 1 प्रिंट करो, 13 डिविजिबल नहीं होता 3 से तो तुम 0 प्रिंट कर रहे हो, 18 डिविजिबल होता है इसलिए तुम क्या प्रिंट कर रहे हो? तुम 1 प्रिंट कर रहे हो। 20 डिविजिबल नहीं होता इसलिए 0 प्रिंट कर रहे हो, और ये वाली वैल्यू भी डिविजिबल नहीं है इसलिए 1 प्रिंट कर रहे हो। इतना क्लियर है कि नहीं फर्स्ट ईयर? बताओ जल्दी, कोड लिखे? Yes, यस sir. क्लियर है सर। ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं तुमने? ठीक है, Yes. मैं कोड लिखता हूँ। देखो टी टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, इसलिए मैंने टी इनपुट कराया है। देखो पहले उसमें दिया हुआ है टी टेस्ट केसेस के लिए होता है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। यहाँ पे सिर्फ एक ही टेस्ट केस है। अब मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इंट n कॉमा k, ठीक है, और i भी ले लूंगा मैं यहाँ पे। और मैं क्या करूंगा, n और k को मैं इनपुट ले लूंगा। देखो मैं C++ को एनकरेज करूंगा कि तुम लोग भी C++ में कोड करो। जितने भी लोग आए हो यहाँ से यही मोटिवेशन लेके जाना कि तुम्हें C++ से कोड करना है या तो जावा से। सो आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ। देखो n और k को इनपुट ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या इनपुट लूंगा बताओ? एरे इनपुट लूंगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? पूरी एरे ऑफ नंबर्स इनपुट लूंगा मैं, और एरे का इंडेक्सिंग कहां से शुरू होगी? 0 से लेके लेस देन n, यानी कि 0 से लेके n-1 तक। ये चीज क्लियर है? देखो एरे को इनपुट ले लिया मैंने, ठीक है, इतना क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? अब मैं फिर से लूप चलाता हूँ। एक बार मैंने इनपुट ले लिया है, अब मैं फिर से लूप चलाऊंगा, और अगर मेरा ith एलिमेंट, अब मैं एक बार तुम्हें मतलब पेन से दिखा देता हूँ। अगर मेरा ith एलिमेंट 3 से डिविजिबल है तो वो क्या वैल्यू देगा? ये बताओ, क्या वैल्यू आएगी? 1 0. 0 करेक्ट। तो अगर ये 0 आएगी तो मतलब ये क्या, यहां से क्या आउटपुट आएगा? 0 आएगा। तो ठीक है, बहुत सही आंसर है। अब इसको कंप्लीट करते हैं कोड को। a of i mod 3 इक्वल 0, ठीक है। a of i mod 3 जो आंसर आ रहा है वो वैल्यू 0 आ रही है अगर। और लेट से अगर कुछ लोग ना समझ पा रहे हो तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, इंट रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर ले लेता हूँ ताकि तुम्हें और समझ में आए। रिमाइंडर rem ले लेते हैं। rem इज इक्वल टू एरे ऑफ i मॉडुलस 3, ठीक है। अब तुम क्या करो, अगर तुम्हारा रिमाइंडर अगर 0 के बराबर है तो तुम क्या प्रिंट करोगे? बताओ जल्दी बताओ। 1 प्रिंट करोगे, 1. ठीक है। एल्स में क्या प्रिंट करोगे? 0. बिल्कुल 0। अब मैं यहाँ पे लाइन चेंज कब करूंगा? जब मेरी पूरी एरे प्रिंट हो जाएगी। देखो किसी एक एरे के लिए सब कुछ मैं साथ में कर रहा हूँ, मतलब 1 प्रिंट हो रहा है, 0 प्रिंट हो रहा है, सब साथ में। तो मैं यहाँ लाइन चेंज नहीं करूंगा। जब मेरा टेस्ट केस खत्म होने वाला होगा, ये देखो यहाँ मेरा टेस्ट केस व्हाइल का खत्म होगा, तो उसके जस्ट पहले मैं लाइन चेंज करूंगा। तो मैं यहाँ पे सी आउट एंडल लिख के दिखाता हूँ। अब मैं ये कॉपी करता हूँ यहाँ से, अब देखो मैं रन करेगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है कभी कभी ऑनलाइन कंपाइलर। देखो 10101 क्या सेम आ रहा है हमारा आउटपुट जो कि सैंपल आउटपुट है? बताओ फर्स्ट ईयर। यस यस सर। सर। सबमिट कर दे Yes, sir. क्वेश्चन को सबमिट कर दें। यस वहाँ 3 नहीं के होगा, के कर दो। अच्छा आई एम सॉरी। एक चीज और अच्छा विनय ने बताया कि यहाँ पे 3 नहीं होगा, के होगा, क्योंकि हमें इनिशियली तो 3 दिया हुआ था बट हम के
हिसाब से चल रहा है ना, क्लियर है कि नहीं? हमें देखो एक सेकेंड में क्लियर कर देता हूँ ये चीज। हमें उस क्वेश्चन में k की वैल्यू 3 दी हुई थी, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब हर बार तुम्हें 3 नहीं दी होगी। अच्छा हुआ विनय ने बता दिया, अदरवाइज हम गलत आउटपुट ले आते हैं, यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ जाता। अगर मेरा a ऑफ i मॉडुलस k, अगर मॉडुलस k इक्वल इक्वल 0 है, अगर 0 के बराबर है तो मैं 1 प्रिंट करूंगा, एल्स मैं 0 प्रिंट करूंगा, ठीक है। लेट मी मूव ऑन, ठीक है। सर हाँ सर ये वाइल वाला लूप समझ नहीं आ रहा था, कैसे वो क्यों चल रहा है, मतलब नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। अच्छा बता देता हूँ तुम लोग को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे कि मैंने तुम्हें t की वैल्यू 2 है, ठीक है, वाइल तो t के लिए चल रहा है, ये क्लियर है तुम्हें? ये चीज क्लियर है? देखो वाइल में मैं t को, ठीक है, t इज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। मान लो पहले तुमने मुझे 2 एलिमेंट दिए और k की वैल्यू दे दी 3, और तुमने मुझे 2 एलिमेंट दे दिए मान लो 17 और 13, ठीक है, क्लियर है? अब मान लो अगली बार ये मेरा एक हो गया, एक टेस्ट केस हो गया। मान लो अगली बार तुमने मुझे 5 वैल्यू दे दी और k की वैल्यू दे दी 2, और तुम एलिमेंट्स दे दिए तुमने मुझे 10, 20, 30, 51, 63, 5 एलिमेंट्स। तो ये दूसरा टेस्ट केस हो गया। तो हर टेस्ट केस के लिए तुम नया चाहोगे ना। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? इसका आउटपुट आएगा अगर डिविजिबल नहीं है तो 0 और 0 0। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लाइन चेंज करूंगा ना, एंडल लगाया था मैंने, लाइन चेंज करूंगा। अब इसका आउटपुट दूंगा, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? 0 नहीं, इसका आउटपुट तो 1, ठीक है, 1 1 1 0 0, ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबमिट करते हैं क्वेश्चन को। सबमिट कर रहा हूँ मैं। क्या दिख रहा है? ग्रीन टिक दिखा? सबको क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। फर्स्ट सबको क्लियर है ना क्वेश्चन? यस सर। आगे बढ़े? किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर मैंने ये सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो सर एक डाउट था, मुझे पूछना था कि सर मैं ऐसे कोडिंग में अभी ज्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, तो अभी मतलब अभी कैसे? अभी नहीं है। नहीं, वी विल टेक योर डाउट। हम अभी सेशन के बीच में डाउट नहीं ले सकते, हम बाद में डाउट लेंगे लास्ट में। ओके सर। ठीक है। हाँ तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्यों सबको मजा आ रहा है ना? देखो 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब वो होगा मॉडुलस पे ही। एक सेकेंड यार, मैं थोड़ा क्वेश्चन इसको छोटा कर लो ताकि तुम लोग को भी बेटर। क्वेश्चन की लिंक्स बाद में मैं दे दूंगा तुम्हें। इस क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा पढ़ते हैं। इसको थोड़ा लेंदी लग रहा है लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही दिया हुआ है। बाकी सब तुम्हें उतना नहीं ध्यान देना, ये इतना क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसकी लेंथ n है, ठीक है। तुम्हें एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसकी लेंथ n है। तुम उस पे you may perform the following operation any number of times. Choose a non-empty substring, possibly whose possible such that each character occurs an even number of times in this substring and erase this substring. ठीक है। For example, देखो AC ABB AD है, we can erase the highlighted substring, ठीक है। अभी मैं बताता हूं तुम्हें, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। CABBAC, ठीक है, CABBAC। 1 सेकेंड, शुरू करें इस क्वेश्चन को। कोई रिस्पॉन्स कर दो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आवाज जा रही है कि नहीं। हेलो विनय, सब सही चल रहा है ना? यस सर, बट कितना टाइम चलेगा? कंटिन्यू करो।
अभी थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, अगर मतलब जब तक तुम लोग इंटरेक्टिव रहोगे तब तक चलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी थोड़े टाइम और चलेगा। यस सर, बट एटलीस्ट सर सॉरी बट इस आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पापा ले जा रहे हैं और दिक्कत हो जाएगी। मैं सोचा था एक you डेढ़ may घंटे leave, you may leave if you don't want to attend the session. थैंक यू सर। देखो प्लीज विनय म्यूट कर दो यार, कौन है? ऑलराइट, CABBSC, एक सेकेंड। देखो अगला क्या है, CABBA और C, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भी तुम्हें एक ऐसी सबस्ट्रिंग मिले, सबस्ट्रिंग का मतलब होता है कि ये एक स्ट्रिंग है, ये सब लोग मान रहे हो कि नहीं, सब लोग जानते हो कि नहीं स्ट्रिंग क्या होती है? Am I audible? Yes, sir. यस सर। हाँ Yes, तो sir. देखो अब ये सबस्ट्रिंग क्या होती है, जैसे मान लो मैंने ये सबस्ट्रिंग ले ली, ये एक सबस्ट्रिंग हो गई। मान लो कुछ और सबस्ट्रिंग में लेना चाहता हूँ, मान लो मैंने CAB ले लिया, तो वो एक सबस्ट्रिंग हो गई CAB। तो सबस्ट्रिंग तुम लोग समझ रहे हो, मान लो मैंने इन दोनों को ले लिया तो ये भी सबस्ट्रिंग हो गई। सबस्ट्रिंग वो होती है कि तुम्हें छोड़ना नहीं है कुछ, अगर ले रहे हो तो जहां से जहां तक ले रहे हो पूरा लो। तो ABBAC, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ABBAC क्वेश्चन है, ABBA, one second guys, sorry, I need to recheck. CABBAC, देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम हर बार ऐसी सबस्ट्रिंग्स चूज करो जिसमें कि कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो और तुम उसे हटा सकते हो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, पहली बार तुमने जैसे इसको चूज कर लिया अगर, तो तुम ये कितनी बार है, बी कितनी बार अगर कर रहा है, यहाँ पे बी कितनी बार अगर कर रहा है, 2 बार। इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहा है तो मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर सकता हूं। तो मेरी स्ट्रिंग क्या हो गई, मेरी स्ट्रिंग ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे ए कितनी बार अकर कर रहा है, 2 बार। इवन, तो इसको भी मैं हटा सकता हूँ, क्वेश्चन में ये कहा गया है। अब क्या बचा मेरे पास, CC बचा, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो तुम्हारी कुछ नहीं बचा ना लास्ट में, एम्प्टी हो गया सब कुछ, समझ रहे हो यहाँ पे? यस सर। देखो yes if it print yes if it is possible to empty whole erase all the string, मतलब स्ट्रिंग अगर तुम कंप्लीटली पूरी स्ट्रिंग को इरेज कर सकते हो तो यस प्रिंट करो, अदरवाइज नो प्रिंट करो। अब अगला वाला ACABBAD, ACABBAD, ACABBA और D, ठीक है, क्लियर है ये वाला? देखो ये इरेज हो जाएगा, ठीक है, ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, ये इरेज हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ACAA और फिर D। अब देखो ये इरेज हो जाएगा। अब देखो AC और D बच रहा है, क्या अब कुछ और इरेज हो पाएगा? नो सर। नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है, ये भी ऑड है, A भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है। कोई भी सबस्ट्रिंग अब ऐसी नहीं बच रही है लगातार जो कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो, ये भी ऑड टाइम्स प्रेजेंट है। तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और ऊपर वाले टेस्ट केस में आंसर क्या आना चाहिए, ऊपर वाले टेस्ट केस में, ऊपर वाले में यस आना चाहिए था और इस वाले में नो आना चाहिए। रुको मैं एक बार दिखा देता हूं तुम्हें पहले और दूसरे का आउटपुट। देखो पहले वाले में यस आ रहा है, दूसरे वाले में नो आ रहा है ना। अब ये वाला करके देखें विनय। यस एक बार स्ट्रिंग को रीड आउट कर देना प्लीज। ओके एक बार यस। हाँ हाँ बोलो बोलो। स्क्रीन एक बार बैक करो एक बार। ऑलराइट ऑलराइट।
एक मिनट। मजा आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? तब तक नेक्स्ट वाला बताओ, मैं बताता हूँ। सॉरी। अच्छा अच्छा, तुम लोग क्या समझे इस क्वेश्चन से, ये बताओ यार। तब तक विनय तुम अपने आप को म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर तुम लोग क्या समझे इस क्वेश्चन से? एक बार, और यदि एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ आई प्लस 1 है तो सीरीज कर दो दोनों को। नहीं नहीं, ये चीज तुम अच्छी बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन सिंपल था, उससे भी सिंपल था। कोई और बताना अगर चाहेगा कि रिवर्स क्या समझ में आया? सर, अगर इसको क्या? इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो और रिवर्स करने पे सेम आ जाए तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा। नहीं नहीं, देखो तुमने सही बोला, थोड़ा सा गलत बोल दिया। थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और। बहुत अच्छा बोला। किसने बोला है? प्लीज टेल मी योर नेम। संस्कृति सिंह। ऑल राइट। ठीक है, अच्छा बोला है संस्कृति, बट थोड़ा सा और सोचो। क्वेश्चन एक बार दिखाऊं क्या? क्वेश्चन यही है। अच्छा, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट हो तो कहीं ना कहीं से वो डिलीट हो ही जाएगा? ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इवन होने चाहिए सर। नहीं, अगर वो अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं ए से जेड तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है तो तुम उसको डिकम्पोज कर सकते हो, उसको पूरी तरह इरेज कर सकते हो ना। यस सर। अच्छा रुको, मैं दिखाता हूँ। सब स्ट्रिंग समझा दो। सब स्ट्रिंग क्या होता है? सबस्ट्रिंग क्या होता है? सबस्ट्रिंग किसी को पता नहीं है क्या? जैसे कि मान लो ये सबस्ट्रिंग हो गई, कंटिन्यूअसली कैरेक्टर्स को ले लिया, तो सी ए बी एक सबस्ट्रिंग हो सकती है। सबस्ट्रिंग क्या हो सकती है? सबस्ट्रिंग ए बी बी भी हो सकती है। सबस्ट्रिंग क्या हो सकती है? सबस्ट्रिंग तुम्हारी बी बी ए सी भी हो सकती है। बी बी ए और सी, ये भी तुम्हारी सबस्ट्रिंग हो सकती है। तो सबस्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है। मतलब अगर तुम जहां से लेना तुमने शुरू किया जिस कैरेक्टर से, तो उस कैरेक्टर से अगर तुम मान लो कि मतलब तुम्हारे ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, मतलब ये कैरेक्टर्स हैं, तुम्हारे कैरेक्टर्स हैं, तो तुम अगर इस कैरेक्टर को ले रहे हो और तुम इस कैरेक्टर तक ले रहे हो, तो ये पूरी, अगर ये पूरी एक स्ट्रिंग है तो यहां से यहां तक एक सबस्ट्रिंग होगी, इतना पार्ट एक सबस्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब अगली चीज आती है कि मैं ये बोल रहा था कि एक बार मैं ये वाला ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं तुम्हें। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर देख रहे हो तुम? सर यदि हम एक एक एरे बार बनाए 26 का, हाँ, अच्छा और बात, अच्छा बोल रहे हो। और एरे बना के यदि मतलब कि वो देख लेंगे ये कितनी बार आ रहे हैं, और यदि वो काउंट 2 का डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। काफी अच्छा बोला तुमने। अब मैं दिखाता हूं। तो अब तुम लोग कहोगे, अब इस क्वेश्चन में देखो, तुम लोग कहोगे कि सर सी और सी तो बगल में है नहीं सर, हटा नहीं सकते। लेकिन पहले मैं सी और सी को थोड़ी हटाऊंगा। ये क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व नहीं करना है। तुम्हें इस क्वेश्चन में प्रोग्रामिंग करके इसको सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें इसको दिमाग से सोच के फिर आउटपुट लिखना है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग। देखो तुम पहले बी और बी को हटाओगे, क्लियर है कि नहीं सबको? पहले बी और बी को हटाओगे क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। अब देखो ए और ए जो दूर थे, पहले ये दोनों दूर थे, ये वाला ए और ये वाला ए दूर थे, लेकिन अब ये दोनों पास हो गए, तो अब ये दोनों चले जाएंगे। देखो ये सी और ये सी दोनों दूर थे, लेकिन अब ये बगल में आ जाएंगे, तो ये हट जाएंगे। तो इसका कंक्लूजन क्या बना? सी ए बी बी ए सी। वन से सॉरी। तो अगर तुम कह रहे हो कि ये और ये से सर इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट तो है लेकिन हटा नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे सबके सब इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है ना, तो कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाएगा कि वो हट जाए। देखो पहले ये हटेगा, फिर ए और ए हट जाएंगे, फिर सी और सी हट जाएगा। लेट से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो ए है और बी है 4 बार, और फिर उसके बाद 2 बार सी है, फिर उसके बाद एक बार और ए है। तो ये पहले हटेगा, पूरा बी हट जाएंगे इवन नंबर ऑफ टाइम्स, फिर सी हट जाएंगे, तो बचेगा क्या लास्ट में? ए और ए बचेगा, वो भी हट जाएगा, तो मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी। तो मैं यही कह रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम लोग ने, अगर मैं ए में से ए को माइनस कर दूं, प्लीज स्पीक अगेन, आई एम नॉट एबल टू हियर।
सर यदि ABC हुआ मतलब 2 टाइम्स है ABC रुको रुको, बोलो क्वेश्चन बोलो। ABC ये बोलना चाह रहे हो तुम? सच दैट कैरेक्टर्स। हाँ ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लाइन पढ़ो। each characters occur an even number of times in this substring। ठीक है, अगर तुम जो भी सबस्ट्रिंग उठा रहे हो, जैसे कि मान लो तुमने ये सबस्ट्रिंग बोली है ना, तो मैं इस सबस्ट्रिंग को उठाऊंगा अब। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं A B C और A को उठाऊंगा, तो इसमें A इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है? प्लीज रिस्पॉन्ड। तो ये हट जाएगा ना, तो ये B और C बचा, और यहां का B और C बचा हुआ था, इसको मैं यहां लाता हूं। अब मैं इस सबस्ट्रिंग को लेता हूं, तो देखो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। क्लियर हो गया? तो फिर तो पूरी स्ट्रिंग को ही ले लीजिए। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ। जैसे बगल बगल रहना जरूरी नहीं है, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं देखो, तुम किसी भी, उन्होंने कहा देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छा पूछा उसने, देखो बहुत अच्छा दिमाग लगाया। ये होती है बात कि एक टेस्ट केस ऐसा सोचना कि तुम्हें चीजों को समझ में आ जाए। अब उसने बोला कि सर यहाँ पे तो ए और ए पास नहीं है। मैंने कहा कि कभी मैंने ये नहीं कहा कि ए और ए पास होने चाहिए। देखो उसमें कहा है कि एक सबस्ट्रिंग लेनी है, ये सबस्ट्रिंग मैंने ले ली, ये वाली सबस्ट्रिंग ले रहा हूं मैं। अब मैं चलो मान लो मैं कुछ और थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा टेस्ट केस सोचा है उसने, देखो ABC। तो अब इसमें क्या हो रहा है, मान लो कि मैं ये वाली सबस्ट्रिंग ले लेता हूँ, ये सबस्ट्रिंग। ठीक है, मेरी सबस्ट्रिंग है CABC। ठीक है, ये सबस्ट्रिंग मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे उठा के ला रहा हूँ, तो ये C कट जाएगा कि नहीं? C 2 बार आ रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो देखो अब AB है, और ये जो सबस्ट्रिंग थी, अब ये डिकम्पोज होके क्या हो गई? AB हो गई। यहाँ पे देखो B इवन नंबर ऑफ टाइम्स है और A भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो ये पूरी एम्प्टी हो गई। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि तुम्हें सारे के सारे एवरी कैरेक्टर शैल बी प्रेजेंट इवन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर सारे के सारे कैरेक्टर, अगर स्मॉल a से लेकर के स्मॉल z तक सारे के सारे कैरेक्टर्स अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? मैं यस प्रिंट करूंगा। अदरवाइज मैं क्या प्रिंट करूंगा? नो प्रिंट करूंगा। ये चीज क्लियर हो गई तुम्हें? अब एक बार और दिखा देता हूं। ABC। अब तुम किसी इस पूरे को भी ले सकते हो तुम एक साथ। अब देखो A इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, B इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, C भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो ये पूरी स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई। अब मान लो मैं ले लेता हूं ABC, उसके बाद एक A और ले लेता हूं, तो यहाँ पे देखो 2 बार B कट गया, 2 बार A कट गया, 2 बार C कट गया, बस एक A अकेला बच गया इवन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये इसमें नहीं हो पाएगा, तो ये नो हो जाएगा, ये यस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा एक चीज ये बताओ, अब फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, तुम्हें समझ में आ गया ना? A से Z तक, A से लेकर के Z तक सारे के सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। ये चीज क्लियर है? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो अब वो कैसे करेंगे, किसी को आइडिया है इस बारे में? किसी ने पढ़ा हो अगर C लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में, फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करूंगा मैं? एरे बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? 26 साइज का 26 साइज का कैसे बनाओगे? हाँ कैसे बनाओगे? मतलब कैसे, मतलब कि मतलब डिक्लेयर कर देंगे, मतलब कि उसमें 0 0 डाल देंगे स्टार्टिंग में। तो देखो तुम ये कह रहे हो कि एरे जो है वो 1 से लेके 25 तक की होगी, ये कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? क्योंकि उसका साइज 26 होगा। ठीक है, लेकिन अब तुम बताओ कैसे, इलैबोरेट करो। मतलब हम देखो अगर एक कैरेक्टर है A, अगर एक कैरेक्टर है A, उसमें से मैं A माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 0।
अगर मैं बी में से ए माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? बताओ। 1 आ जाएगा। 1 अगर मैं सी में से ए को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 सर 2 आ जाएगा। अगर मैं जेड में से ए को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 25 25। तो मतलब हमें एक एरे ही डिक्लेयर कर लें तो हो जाएगा। ठीक है, तो एरे हम डिक्लेयर कर ले कितने साइज की? 26 साइज की। और उसको इनिशियलाइज कर दे 0 से। पूरी एरे को अगर 0 से इनिशियलाइज करना है तो इस तरह इनिशियलाइज किया जाता है। तो हमारा काम हो जाएगा। हम हर एक कैरेक्टर के लिए चेक कर लेंगे। हम a ऑफ 0, a ऑफ 1, हर कैरेक्टर के लिए हम चेक करते जाएंगे a ऑफ 25 तक। अगर कोई भी ऐसा हो जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट हो तो हमें दिक्कत है, हम नहीं नो प्रिंट करेंगे। अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है, a ऑफ 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स बी मोर क्लियर। a ऑफ 0 किसको f ऑफ 0 किसको प्रेजेंट कर रहा है? मान लो f ऑफ 26 डिक्लेयर कर दिया मैंने। f ऑफ 26 अगर मैंने डिक्लेयर किया तो f ऑफ 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? f ऑफ 0 a को रिप्रेजेंट कर रहा है, a कैरेक्टर को। f ऑफ 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी बोलो तुम लोग। f ऑफ 25 किसको रिप्रेजेंट करेगा? जेड को। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, सही है। तो अब कोड में लिखना शुरू करता हूं ताकि तुम्हें इंप्लीमेंटेशन करके ही मैं दिखा दूं। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट ईयर? इज एवरीथिंग क्लियर? देखो मैं स्ट्रिंग s ले रहा हूं, ठीक है, और मैं ले रहा हूं इंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 26 कैरेक्टर्स इज इक्वल टू, क्या कर दूं मैं? 0 कर दूं। तो इससे क्या होगा? सारे के सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी ऑल सेट टू 0। ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसी 0 सेट हो जाएगी। अब मैं इसमें क्या करूंगा? अब मैं पहले तो ये स्ट्रिंग डिक्लेयर करके मैं स्ट्रिंग इनपुट ले लूंगा, और मैं एक इंट n भी लेना चाहूंगा, इंट n, i। ठीक है, अब मैं n में क्या स्टोर कर रहा हूं? n में स्ट्रिंग का साइज चाहिए कि नहीं चाहिए? साइज कैसे निकालते हैं स्ट्रिंग का? ऐसे? कोई बोलेगा? साइज ऐसे निकालोगे ना? हाँ अच्छा, एस साइज होता है, डॉट साइज होता है, सॉरी। हाँ, तो डॉट ही तो लिखा है मैंने। सर वो जावास्क्रिप्ट डॉट लेंथ होता है, तो वो मैं कंफ्यूज हूं। वो भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो यार, वो लिख के दिखा देता हूँ, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। लेंथ से भी चलेगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा यार, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज क्लियर है? अब मैं क्या करूं? अब मैं ले रहा हूं इंट x। सर मॉड हाँ ऑपरेटर। ठीक, हाँ मॉड ऑपरेटर क्या हुआ? सर परसेंट मॉडुलस 2 इक्वल टू डबल इक्वल टू 0 करके इवन को हटा देंगे। अभी मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, सही, ठीक, अच्छा कह रहे हो तुम। देखो x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू ith स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर माइनस द कैरेक्टर a। इतना चीज क्लियर है कि नहीं तुम लोग को? ये चीज क्लियर है? ये स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा? अगर x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? कैरेक्टर a को बताओ। अगर x की वैल्यू 1 है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो b, कैरेक्टर b को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम्म, ठीक है, तो मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ x को प्लस प्लस कर दे रहा हूं। ठीक है, ये इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। अब मैं बताता हूं कैसे होगा। जैसे नोट पैड पे आ जाता हूं, देखो C A B B A C, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, तो A कितनी बार है? 2 बार है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 कितनी होगी? 2 बार होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितनी बार होगी? 2 बार होगी। 2 बार। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मतलब 2 कितनी बार होगी? सर वो भी 2 बार। 2 बार। बाकी सब 0 बार होंगी। ठीक है, बाकी सब 0 रहेंगी। यस सर। बाकी सब 0 रहेंगी। तो कोई भी सारी की सारी क्या है? इवन है। तो सारी की सारी इवन है तो मैं यस प्रिंट करूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस चीज को इंडिकेट कैसे करूंगा? मैं फ्लैग वेरिएबल लेके चलूंगा, इंट फ्लैग। अच्छा चलो ठीक है, फ्लैग इज इक्वल टू, मैं 1 कर देता हूँ। 1 करने का मतलब है
मैं अगर देखो, अगर मैं फ्लैग को 1 कर रहा हूँ, अगर मैं फ्लैग को 1 कर रहा हूँ, अगर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ फ्लैग, उसको अगर मैं 1 कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सारे के सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी इवन है। अगर ऐसा नहीं है, मान लो 2, 2, 4, 8, मान लो किसी की फ्रीक्वेंसी 3 आ जाती है, ठीक है, और इस तरह चलता रहता है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा? अगर ये 3 आ जाता है तो ये मतलब क्या है, मॉडुलस 3 mod 2 करने पे क्या आ जाएगा? 3 mod 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ? 1। इसका मतलब ऑड है। अगर किसी भी अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर ऑड है, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि मेरा फ्लैग 0 कर देना चाहिए मुझे। इसका मतलब कि मैं फ्लैग को 0 कर दूंगा, ठीक है, इसका मतलब फ्लैग 0 कर दूंगा। अगर मेरा फ्लैग 1 है, अगर मेरा फ्लैग 1 रह जाता है लूप चलने के बाद भी, अगर मेरा फ्लैग 1 रह जाता है, इसका मतलब कि मैं कभी भी इस पार्ट में नहीं, मुझे कभी भी कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं मिली जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है। अगर मेरा फ्लैग 0 है, इसका मतलब मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसी मिली है जो कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। तो अब मैं इसको कंप्लीट करता हूं और तुम्हें दिखाता हूं। देखो, अगर इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई mod 2 इक्वल क्या आना चाहिए? 1। अगर 1 आ रही है तब क्या करेंगे? फ्लैग को क्या कर देंगे बताओ? 0 कर देंगे कि नहीं? और यहां से ब्रेक कर देते हैं फिर, ठीक है। अगर मेरा फ्लैग अगर 1 है तो इसका मतलब क्या होता है? फ्लैग 1 है, इसका मतलब क्या है? यस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस लिख देंगे। फ्लैग अगर मेरा 1 रह जाता है, इसका मतलब assuming all are even times, क्लियर है? अगर मेरा फ्लैग 1 में assume all are even times, फ्लैग 1 है मतलब कि मैं assume कर रहा हूं कि हर कोई एक बार, हर कोई even number of times प्रेजेंट है। अगर कभी भी मेरा फ्रीक्वेंसी, अगर मेरा कभी भी 2 से डिविजिबल, 2 से रिमाइंडर निकालने पे अगर कभी भी 1 आता है, इसका मतलब कि मैं जो सोच रहा था वो गलत है और मेरा फ्लैग 0 हो जाना चाहिए। तो अगर लूप खत्म होने के बाद अगर मेरा कभी भी फ्लैग 1 रहता है, इसका मतलब यह है कि मैं कभी भी ऐसी फ्रीक्वेंसी एनकाउंटर नहीं किया जो कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट हो। तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा? मैं यस प्रिंट कर दूंगा। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सॉरी गाइस, लेट मी कॉपी द टेस्ट केसेस। देखो ये रन हो रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन? अच्छा, उसमें लेंथ पहले से दी हुई है, मुझे लेंथ निकालनी नहीं है। 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे क्या होगा कि इंट n, i में पहले डिक्लेयर कर दूंगा और मुझे लेंथ n पहले से दी हुई है, ठीक है। देखो अब चला के दिखाता हूँ। देखो यस नो यस नो, आउटपुट देखो यस नो। किसी को डाउट है अभी फर्स्ट ईयर में? किसी को भी डाउट हो किसी भी तरह का? सर हाँ सर एक छोटा डाउट है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछो। सर जैसे सर आपने फ्लैग लिया था ना सर, हाँ एक और सर अगर प्रोसीजर सर टाइप का सर बताएं सर, आपको थोड़ा सा मतलब अगर सही हो तो बताइएगा। बोलो। सर जैसे सर हम लोग को उसमें से इवन हटाना था, तो इवन नंबर वाले हटा के एक नई स्ट्रिंग बना लेते और फिर नई स्ट्रिंग को उसमें ऐड करा देते, जो आपका SI है। देखो जो क्वेश्चन करने को कह रहा है ना, तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं वही चीज करूं जो क्वेश्चन करने को बोल रहा है, ठीक है ना? ये चीज क्लियर है तुम्हें? जी सर। लेकिन तुम उसको करोगे बार बार तो तुम बार बार स्ट्रिंग को चेंज करोगे। मान लो मैंने तुम्हें बहुत बड़ी स्ट्रिंग दे दी तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम और मेमोरी नहीं लगेगी तुम्हारे सिस्टम की? ये सर हाँ जी। तुम्हें क्वेश्चंस को डिकोड करना होता है, प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करना होता है। तुम्हें
बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी थी, लेकिन तुमने पैटर्न देख के तुमने उसको सिंप्लीफाई किया। ये चीज समझो। तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उससे तुम्हारा, अगर मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग दे दी जिसकी लेंथ 10⁵ हो, या फिर मतलब एक जिसकी लेंथ 1 लाख या फिर कुछ ऐसे कुछ हो, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी। तुम बार बार रिपीट करोगे प्रोसेस, बहुत टाइम लगेगा तुम्हें उसको उसको छोटा करने में, और हो सकता है टाइम लिमिट एक्सीड हो जाए या मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाए। समझ रहे हो? तो इससे सर वो गार्बेज मेमोरी ज्यादा भर जाएगी सर, मतलब गार्बेज मेमोरी नहीं, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। मतलब रन टाइम टाइम या तो टाइम लिमिट एक्सीड हो सकती है या तो मेमोरी लिमिट एक्सीड हो सकती है तुम्हारी। जी सर, वो जी सर। तो तुमने अच्छा पॉइंट रेस किया, लेकिन देखो मैंने अभी तक तुम्हें क्या क्वेश्चंस में सिखाया है कि तुम्हें क्वेश्चंस दिए होंगे घुमा फिरा के, लेकिन तुम्हें करना वही रहता है, उनको डिकम्पोज करना रहता है छोटे में। तो अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं सबमिट करूं इस क्वेश्चन को। लेट मी सबमिट कर दिया हमने। देखो करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर आवाज आ रही है? यस सर। तो अब तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग और आगे पढ़ना चाहते हो या फिर मतलब थक गए हो? कोई बोलो, मतलब एक क्वेश्चन और ले लें या फिर मतलब रुक जाएं? ये क्वेश्चन क्लियर था कि नहीं? ये क्वेश्चन क्लियर है? यस डाउट लेते हैं, यस, इसके बाद सेंड करते हैं मीटिंग। ठीक है। तो अब देखो आज के लिए इतना ही सही है। तुम लोग को अच्छा लगा कि नहीं, सब बताओ यार, रिस्पांस दो तो हमें पता चले, हम उस तरह से तैयार मतलब हो। तो आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है। यस आ रही है। हाँ, तो आज मैंने 3 क्वेश्चन कराए, तुम लोग को सही लगा, अच्छा लगा, काफी सीखने को मिला या नहीं मिला? यस 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 सर। सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि सीपीयू एक्चुअल में क्या होती है, समझ रहे हो? थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब तुम लोग अपने क्वेश्चंस पूछो सीपीयू से रिलेटेड। whatever doubts you have, we'll try to clear them up. डाउट पूछो एक एक करके। किसी को डाउट है कुछ? सर मुझे, हेलो सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये पूछना था कि जैसे मुझे अभी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं कैसे स्टार्ट करना है चीजों को, तो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है अभी प्रोग्रामिंग में, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे मुझे जाना है, मतलब एक रोड मैप टाइप का छोटा सा कुछ। तुम पहले C++ पढ़ो और उसके बाद हैकर रैंक पे प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करो। सर तो इसका आप मुझे वो बता सकते हैं कहाँ से कुछ रिसोर्स वगैरह मैं कहाँ से पढूं, मतलब? तुमने टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन किया होगा हमारा, तो कोडशेफ का MMUT चैप्टर का टेलीग्राम ग्रुप फर्स्ट ईयर का है, तो उसमें हमने रिसोर्सेज शेयर किए हुए थे। आज हम फिर से रिसोर्सेज शेयर कर देंगे। तो तुम उस सौरभ शुक्ला सर की प्लेलिस्ट है, मैं तुम्हें दिखा दूं? रुको, यस सर, वेट। दिखा दीजिए। हाँ, 1 सेकेंड यार, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड। C++ ठीक है। देखो ये देखो, ये प्लेलिस्ट दिख रही है तुम लोग को? ये Yes, sir. C++ की 74 वीडियोस की प्लेलिस्ट है। तो इसमें सब कुछ बताया हुआ है सर ने, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना तुम लोग, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? और अगर सी पढ़ना हो तो ये वाली प्लेलिस्ट है 158 वीडियोस, ये देख लेना। और 1.7 1.5x पे देखना, क्योंकि सर थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं बट अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? ये अगर C++ देखना है तो सौरभ शुक्ला सर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? आगे आगे कोई डाउट और कोई डाउट? सर ये 74 वीडियोस करने के बाद मैं हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूं? हाँ बिल्कुल, वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मैक्सिमम 10 दिन या 15 दिन लगेंगे तुम्हें ये करने में, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ओके सर। अगर चाहो तो टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, जैसे एरे पढ़ के एरे क्वेश्चंस कर लो। नहीं, बट क्या है ना कि सर अगर तुम 74 वीडियोस पूरा देख लोगे ना तो तुम्हें बेसिक पूरी क्लियर हो जाएगी,
सो दैट इज व्हाई वी वुड सजेस्ट एवरीवन कि तुम ये प्लेलिस्ट देख लो। आगे और किसी के डाउट्स हैं तो वो पूछ सकता है। हेलो सर। सर एक छोटा डाउट है सर। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे सर सी प्लस प्लस सर खत्म हो गया तो सर, लेकिन सर कोड शेप पे जब सब गए सर तो मतलब सर वहाँ क्वेश्चन मतलब बहुत मतलब सर डीएसए मतलब टाइप के थे। तो सर डीएसए के लिए सर गीक्स फॉर गीक्स सर से कोड करें। शेफ पे तुमने क्या किया, बेसिकली क्या किया कोड शेफ पे? सर सी प्लस प्लस के जैसे सर चल रहा था तो पैरेलल में ही उसको कोड शेप चलाने की सर कोशिश किए थे, पर हैकर रैंक नहीं लगाया? सर हैकर अर्थ के सर क्वेश्चंस हो रहे थे हैकर अर्थ पे। हैकर रैंक नहीं सर हैकर रैंक पे नहीं है, हैकर अर्थ पे। हैकर रैंक लगा, पहले हैकर रैंक लगाओ फिर इस पे आओ। तुम लोगों को दिखा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा लेवल हाई था। अगर तुम हैकर रैंक लगा लेते हो ना तो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए हम एम्फसाइज कर रहे हैं, ठीक है? जी सर एक और चीज सर। पहले हैकर, हाँ जैसे कि देखो अगर यहाँ पे लगाना भी है, मान लो लगाना है तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जी। मान लो किसी का लगाने का मन है तो क्या करोगे? देखो ये प्रॉब्लम, देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बाय डिफिकल्टी लेवल आ रहा है, ठीक है? इस पे मैंने क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको नंबर ऑफ सबमिशन के हिसाब से, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ सबमिशन से लेकर लोअर नंबर ऑफ सबमिशन तक देखो मैंने इसको सॉर्ट कर दिया था। और देखो मैंने हर एक क्वेश्चन लगाया हुआ है, ऑलमोस्ट ये देखो सब ग्रीन है, सब मैंने लगाए हुए हैं, ये देखो। मतलब सबसे ज्यादा जिसके सबमिशन हो, इजी बिगिनर वाले में जाओ, और नंबर ऑफ सबमिशन के हिसाब से सॉर्ट कर दो। मतलब जैसे मान लो अज्यूमिंग कि तुम्हें इस तरह कुछ दिया हो, मान लो तुम्हें इस तरह से तुम जाते हो, तुम्हें इस तरह दिया हुआ है, तो सबमिशन पे क्लिक करोगे, सक्सेसफुल सबमिशन पे, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें सॉर्ट करके दे देगा, तो सबसे ज्यादा सबमिशन से सबसे कम सबमिशन पे। तो देखो ये मैंने लगाए हुए हैं, सबसे ज्यादा सबमिशन बिगिनर वाले में, मोस्ट नंबर ऑफ सबमिशन से लेके लोअर नंबर ऑफ सबमिशन तक। तो तुम्हारे जितने ज्यादा सवाल तुम लगा लोगे इस तरह से तो तुम्हें आ जाएगा, ठीक है? इस तरह लगाना है तुम्हें, अगर यहाँ पे लगाना है तो इस तरह लगाओ, ठीक है? क्लियर है? सर जीएफजी कैसा है? जी सर। अभी नहीं, अभी इतना नहीं। अभी थोड़ा कम पे स्टिक करो, हैकर रैंक पे ही स्टिक करो, और उसके बाद इस तरह से कोड शेफ लगा सकते हो। नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि मतलब कि जीएफजी प्लेटफॉर्म सही है मतलब कि या नहीं? पढ़ने के लिए नहीं सर, प्रोग्राम प्रैक्टिस के लिए। अच्छा है, अगर तुम कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हैकर रैंक और कोड शेफ करना मतलब टाइम निकाल के। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा ही, मतलब काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है, बट हम जो बोल रहे हैं अगर तुम उन पे स्टिक करोगे तो थोड़ा सा तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाएगा। किसी और का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है, कोई भी सीपी से रिलेटेड डाउट हो, या फिर अगर तुम चाहते हो कि कोई चीज नहीं आ रही वो हम सेशन ले पढ़ा दें या उसके क्वेश्चन लगवा दें तो वो भी हम कर सकते हैं, तो तुम पूछ सकते हो। कोई और पूछना चाहता है कुछ? हाँ हाँ